So, good evening, everyone. Jai Jagannath. So, welcome to Dr. Sanjeev Sayur Academy. We are comprising of expert guides, Dr. Sanjeev Kumar Das, myself, Dr. Akshay Kumar, Dr. Saurabh, Dr. Vikas. So, as our academy is providing you experienced coaching on specially AIA, PGAT, different entrance examinations like NTET, exit entrance, Public Service Commission entrance, and also entrance for the research officers. And our coaching is exclusively based on ethical discussions and also practice-based discussions. Some images will be given to you, some particular experience, clinical experience will be given to you, some mnemonics will be given to you. And also, as a protocol, we are providing everyday classes, and in every weekly, you'll be getting examinations, and in every month, end of the month, you will be appearing mega examinations. And the very special thing is that whatever we are teaching to you in a week, so at the end of the week, definitely we will be having a very good interactive sessions and also discussions and questions. Whatever we have taught to you, that will be led by Dr. Saurabh, our expert. Okay, so today I'll be discussing some important points from Charak Samhita that you need to listen everything. So as you know, our knowledge is very limited, and also whatever we are teaching and whatever we are reading, everything becoming in the depth of the sea, and very limited things that we will see. But the main thing is there in the bottom of the sea, and it is submerged in the sea. Okay, so today, before discussing everything, let me discuss about, before entering into the topic for the discussion, let me enter into the pathogenesis of the disease. So you will be comfortable in Hindi. So we'll be discussing the topic from the pathogenesis point of view. Okay. So as everybody knows that our body is such a thing that if we are having or maintaining our body in a proper way, everything will run good. So जैसे कि आप लोगों को ये पता होता है कि हम लोगों का जो शरीर होता है, इसमें क्या होगा कि हम जो कुछ खाएंगे उसके ऊपर हमारा अग्नि बढ़िया तरीके से काम करता है, और अग्नि अगर ठीक से हमारा होगा तो अग्नि से क्या होगा, आहार का परिणाम ठीक रूप से हो सकता है, और आहार परिणाम ठीक से ढंग से हो सकता है तो इसके बाद आहार रस बनता है, और आहार रस से विभिन्न रसदादी धातु बनते हैं, और उसी हिसाब से हमारा शरीर बना हुआ रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये होता है कि हमारे शरीर में, और हम लोग जो कुछ डाइट ले रहे हैं, वट एवर डाइट वी आर टेकिंग, these diets are firstly coming to our digestive tract, and the very important thing where exam point of view maximum question is asked, that was पाचक अग्नि. So whenever diet we are taking, जब कुछ हम लोग डाइट ले रहे हैं वो सारे डाइट हम लोगों का ग्रहणी तक आता है। जब ग्रहणी को वो डाइट आता है और वही ग्रहणी में पाचक अग्नि क्या करता है, वो डाइट को, वो आहार को परिणमन कर देता है, यानी डाइजेशन कर देता है। तो हित आहार हम लोग अगर ले रहे हैं तो पाचक अग्नि क्या करता है, वो आहार को अच्छी तरीके से, अच्छी ढंग से परिणमन कर देता है। तो यहीं से एक बढ़िया क्वेश्चन आ जाता है कि हित आहार लेने के पश्चात जो कुछ डाइट हम लोग लेते हैं उसके ऊपर पहले कौन काम करता है, पाचकाग्नि काम करता है। और उसमें से क्वेश्चन आता है ये पाचकाग्नि का मेन स्थान क्या होता है, व्हाट इज द मेन साइट ऑफ दैट पाचकाग्नि। ये पाचकाग्नि का मेन साइट होता है अपना ग्रहणी। चरक संहिता में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि ये वहां का पाचकाग्नि का जो स्थान होता है वो आमाशय होता है। वहां लिखा गया है कि पाचकाग्नि का जो स्थान होता है वो ग्रहणी ही होता है। ठीक है, और वही पाचकाग्नि का स्थान को जठराग्नि किसने बोले हैं, पाचकाग्नि को जठराग्नि किसने बोले, चक्रपाणी जी ने बोले हैं। ठीक है, तो जो कुछ आहार हम लोग ले रहे हैं वो पहले ग्रहणी में आएगा, और ग्रहणी में पाचकाग्नि वो आहार के ऊपर काम करने के बाद क्या होता है, वही आहार से आहार रस बनता है, और वही रस आहार रस से स्थूल रूप से जैसे आप लोग मतलब रस आहार रस बनता है, और उसी में मूत्र पुरुष आदि मल बनता है, और वही आहार रस से जब रसाग्नि पाक हो जाता है तो उसमें से रसधातु उत्पन्न होता है, और रसधातु के जैसे मल हो गया कफ बनता है, और उसका उपधातु जैसे अपना स्तन्य आर्तवादी बन जाता है। ऐसे ऐसे रक्त मांस मेदा अस्थि मज्जा शुक्र ऐसे धातु बन जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपरली अपना आहार ले रहे हैं और प्रॉपरली अपना विहार अगर सेवन कर रहे हैं तो ऐसा ही होगा। और जिसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारा होता है, ये ग्रहणी एरिया होता है, और वही ग्रहणी एरिया में क्या होता है, जो कुछ आहार हम ले रहे हैं और जो कुछ विहार हम सेवन कर रहे हैं, वही ग्रहणी में जो पाचकाग्नि रहता है वो सारों को पचाने के बाद हम लोगों का आहार रस बनता है, उसी से रस रक्तादि धातु बनते हैं, और उसी रस रक्तादि धातु जब शरीर को पोषण करता है तो हम लोगों का शरीर क्या होता है,
बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन इसमें यह है, अगर मेरे को मान लो कि अगर कोई ठीक ढंग से आहार सेवन नहीं कर रहा है, कोई ठीक ढंग से बिहार सेवन नहीं कर रहा है, मान लीजिए मैं अगर बोलूं कि मैंने अभी क्या किया, अभी भुना हुआ चीज खा लिया, फ्राइड चीज मैंने खा लिया, और ये फ्राइड चीज खा लेने के बाद मैंने क्या किया ना, तुरंत कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, और कोल्ड ड्रिंक्स पी लेने के बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे ऐसे करने के बाद जैसे बहुत सारे फ्राइड आइटम्स खा देने के बाद मैंने तुरंत जिम गया, मैंने तुरंत एक्सरसाइज कर लिया, और ठंडे यानी एसी रूम से निकल के तुरंत बाहर को एक्सपोज होना, बाहर से तुरंत आके कोल्ड को आना। तो ऐसे आहार और विहार सेवन करने से क्या होता है, ये पाचकाग्नि जो होता है हमारा, ये जो पाचकाग्नि होता है, ये पाचकाग्नि क्या होता है, विकृति हो जाता है। जैसे कि चरक जी ने 4 प्रकार का अग्नि बोले हैं, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और दुर्बलाग्नि, ठीक है, और समाग्नि बोले हैं। लेकिन समाग्नि के छोड़ के विषमाग्नि, दुर्बलाग्नि और तीक्ष्णाग्नि जो होता है, ये विकृत अग्नि होता है। और ऐसे अहित आहार विहार सेवन करने के बाद हमारा अग्नि जो होता है वो दुर्बल हो जाता है। जब हमारा अग्नि दुर्बल हो जाता है तो ये वेरी एसेंशियल चीज हमारे मतलब नॉन एसेंशियल चीज हमारे ग्रहणी में बन जाता है, हमारे कुष्ठ में बन जाता है, उसका नाम होता है आमो, उसका नाम होता है आमो। तो आमो के लिए एक ही चीज बोला गया है, जठरा नल दौर्बल्यात विपकस्तु जरस साम संज्ञकम सर्वदोष प्रकोपणम। और वही जो आम होता है, वो आम क्या होता है ना, सारे दोषों का प्रकोप का मेन कारण होता है। और यही आम से शुरू होता है हमारा शरीर के डिफरेंट डिजीज का मतलब उत्पत्ति का क्रम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये सारे चीज आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ भी टॉपिक अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो हमारा एकेडमी में ये होता है, हमारे कुछ भी टॉपिक हम लोग अगर आप लोगों को पढ़ाते हैं तो वो टॉपिक को लेने के लिए हमको प्रीवियस कुछ चीजों को डिस्कशन करना पड़ता है, ताकि यू विल हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन इट। तो जो आमव बन जाता है, वो आमव क्या करेगा, वो आमव कुष्ठ में पड़ा रहेगा, वो आमव कुष्ठ में पड़ा रहेगा। तो अब क्वेश्चन आएगा, कुष्ठ क्या होता है ना, कुष्ठ पुनरुच्यते शरीर मध्य महानिम्न आमव पक्वास्थिति। ये शरीर का मध्य भाग होगा, निम्न भाग हो सकता है, ठीक है, किंबा आमो और पक्वास ये भी कुष्ठ हो सकता है। तो यानी कुष्ठ में आम अगर रहे का मतलब ये क्या हो सकता है, शरीर के ऊर्ध्व भाग में, यानी आप लोग अगर डायग्राम ठीक से देख रहे हो तो ये जो अपना ग्रहणी हुआ यही में आम रहा, ये आम क्या करेगा, शरीर मध्य महानिम्न, यानी ये शरीर के मध्य भाग में भी आम रहेगा, ये निम्न भाग में भी आम रहेगा, और ये भाग में ऊपर भाग में भी आम रहेगा। तो ये आम करेगा क्या, ये आम करेगा क्या ना, ये आम क्या करेगा, अब जो वायु एक एंटिटी हमारा शरीर में होता है, ये वायु क्या करेगा, ये आम को लेके यही अपना जो कुष्ठ से लेके वही आम को कहीं बाहर की ओर लेके चला जाएगा। क्यों लेके चला जाएगा, क्योंकि जो वायु होता है, जो कफ और पित्त जो होते हैं ये पंगु होते हैं, इसलिए बोला गया है कफ पंगु पित्त पंगु पंगव मलधातव वायु न जत्र नियंति तत्र गच्छन्ति मेघवत्। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि कफ पंगु पित्त पंगु पंगव मलधातव वायु न जत्र नियंति तत्र गच्छन्ति मेघवत्। ये जो श्लोका का रेफरेंस क्या है भाई, ये सारंगधर संहिता का रेफरेंस होता है, और ये सारंगधर संहिता का 3 खंड होता है, प्रथम खंड, मध्यम खंड और उत्तम खंड, उत्तर खंड होता है। ये प्रथम खंड का श्लोक होता है, इसी में से दोसादी का जहां वर्णन किया गया उसी का श्लोक होता है, ठीक है। तो वायु क्या करेगा, वो आम को लेके वो कुष्ठ से लेके कहीं बाहर जाके फेंक देगा, तभी शुरू होता है हमारे शरीर में डिजीज का इवोल्यूशन। तो वायु जब कुष्ठ से लेके मतलब बाहर चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो दोषों का गति बोलते हैं, उसको दोषों का गति, उसी को हम लोग दोषों का गति बोलते हैं। और जहां जाके वो आम लॉज कर जाता है, जहां जाके वो प्रकोपित दोष इन चीजों को जाके ढेर के रख देते हैं, वहीं हमारा डिजीज प्रोग्रेशन शुरू हो जाता है, वहीं से डिजीज हो जाता है। और वही जब अपना कोष्ठ से लेके वायु जब इन्हीं दोषों को लेके बाहर फेंक देता है, तभी डिफरेंट जगहों में ये व्याधि हो जाता है। और वायु जिस प्रोसीड्योर से यही अपना कोष्ठ से लेके सारे आम को, सारे दोषों को, सारे प्रकोपित दोषों को जब बाहर फेंक देता है, बाहर मतलब क्या, शरीर के अंदर, वो उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, बाद में लूंगा, कहां फेंकता है। और ये फेंकने का जो प्रोसीड्योर होता है, ये प्रोसीड्योर किससे होता है, षट क्रियाकाल के माध्यम से होता है। और षट क्रियाकाल के माध्यम से क्या होता है ना, दोष ये सारे कुष्ठों से जाके, कुष्ठों से निकल के, कुष्ठों से बाहर जाके वो कुष्ठ के आउटर साइड में डाले जाते हैं, पूरे शरीर में विस्तारित हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी जो प्रोसीड्योर से होते हैं उसको बोला जाता है षट क्रियाकाल। और षट क्रियाकाल में से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, संचय च प्रकोपंच प्रसरम स्थान संचरण व्यक्ता भद्दी जो जवेति स्वभवेत भविष्यकोत्तमम। षट क्रियाकाल ये होता है कि दोषों का संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचरण, व्यक्ता भेदा तक ये प्रोसीड्योर से पूरा जाके बाहर दोष मतलब
पूरा ये हो जाता है, दोषों का जब प्रादुर्भाव हो जाता है तो व्याधि आ जाता है, व्याधि का भेद आ जाता है, सारे षटक्रिया काल में वर्णित है, जो मैं डिस्कशन करूंगा बाद में, ठीक है। तो यही षटक्रिया काल का एक क्वेश्चन आता है कि ये किसका देन है, महर्षि सुश्रुत ने उसको षटक्रिया काल का वर्णन किया है। और ये षटक्रिया काल में जो संचय होता है, प्रकोप होता है, प्रसर होता है और स्थानासंश्रय होता है। इसी में से और एक बढ़िया क्वेश्चन आ जाता है कि स्थानासंश्रय अवस्था में हर डिजीज का पूर्व रूप आता है, जहां रहते हैं दोष, जब यही कोष्ठ से दोष जब जाके जो स्रोतस में रहा और जहां पे जाके स्रोत मतलब दोषो जाके संग हो गया, वही संग में क्या होगा ना, दोष और जहां में रह गया जो मतलब दूष्य, वहीं पे समूर्छना हो जाता है। जब दोष और दूष्यों का समूर्छना हो जाता है तब क्या होता है, डिजीजों का पूर्व रूप बन जाता है, ठीक है। तो दोषों का जब कोष्ठ से बाहर की ओर गति होता है और बाहर की ओर जब मूवमेंट होता है, इसको दोषो गति बोला जाता है। और दोषो जाके जहां रहेगा वहीं पे व्याधि सृष्टि करेगा, और वहीं पे जहां पे दोषो जाके रह जाता है वहीं पे दोषों को संग बोला जाता है। और दोषो क्या करेगा, वही धातु के साथ अपना मूर्छना कर देता है। किस रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब के साथ मूर्छना कर देता है। जब दोषो जाके धातु के साथ मूर्छना कर देता है तो विभिन्न धातुगत विकार उत्पन्न हो जाते हैं। रसख्य, रक्तख्य, मांसख्य, मेदख्य, रस प्रदूषित विकार, रक्त प्रदूषित विकार, रसवशुतोषित विकार, मांसवशुतोषित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और वही दोष प्रकोपित दोष आम को लेकर जब सिर में रहेगा सिर रोग होगा, जब हृदय में जाएगा तो हृदय रोग होगा, बस्ती में जाएगा तो प्रमेय होगा, ठीक है। और प्रमेय में वही दोष जाके फिर प्रमेय पीड़िका करेगा। तो ये होता है अपना डिजीज का पूरे इवोल्यूशन। तो इसको मैं अगर जो चैप्टर में चरक ने इसको वर्णन किया, वो चैप्टर का नाम होता है टोटल, ये चैप्टर का नाम क्या होता है, ये चैप्टर का नाम होता है अपना कियंत शिरस्यम अध्याय। ये चैप्टर का नाम क्या होता है भाई, ये चैप्टर का नाम होता है कियंत शिरस्य नाम अध्याय। तो कियंत शिरस्य नामक अध्याय में चरक जी ने क्या किया ना, पूरे डिजीज का प्रोसीड्योर बताएं, और ये शरीर में ऐसे ही रोग होता है और इसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको अच्छी तरीके से सूत्रस में पढ़ाऊंगा कि हर डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। आपको चिकित्सा सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, कैसे हम चिकित्सा उसका करेंगे उसका भी मैं बताऊंगा। तो दो चीज मैं कवर करूंगा, ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट से क्लिनिकली चीजों को मैं ऐसे आपको मतलब पढ़ाऊंगा जिसमें एंट्रेंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको आ जाएगा और समझने का चीज भी आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। बस आपको चाहिए कि थोड़ा खोपड़ी में नारियल का तेल डाल के मेरे क्लास में बैठ जाओ भाई, ठीक है। तो कियंत शिरस्य नामक अध्याय में ये चीज बोला गया है। और कियंत शिरस्य नामक अध्याय का नेमिंग क्यों किया गया, क्योंकि 16 सूत्रस्थान चरक सूत्रस्थान 16 चैप्टर के बाद 17 चैप्टर चरक सूत्रस्थान का होता है कियंत शिरस्य। और चरक सूत्रस्थान 16 चैप्टर का नाम क्या होता है, चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय। यानी चिकित्सा के लिए जो यानी चिकित्सा के लिए वमन विरेचन क्या क्या उपयोगी योग्य अयोग्य रोग रोगी सारे जितने सारे चीजों को वर्णन करने के बाद हम क्या करेंगे, ये सारे ट्रीटमेंट का एस्पेक्ट सारा वर्णन करने के बाद ही डिजीज के बारे में चरक जी वर्णन कर रहे हैं चरक सूत्रस्थान 17 चैप्टर में, और इसका इवोल्यूशन भी वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होता है उपकल्पनीय अध्याय, चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय, उपकल्पना कर लिया गया सारे चीजों का, पंचकर्म औषधि का उपकल्पना कर दिया गया, जैसे वमन औषधि, विरेचन औषधि, बस्ती का औषधि, नस्य का औषधि, इसके योग्य रोग अयोग्य रोगी कहाँ पे औषधि रखा जाएगा, और उसका सारे मतलब वमन कक्ष, विरेचन कक्ष, सारे चीजों का डिस्क्रिप्शन किया गया। सारे चीजों का डिस्क्रिप्शन करने के बाद चरक जी क्या किया कि भाई अब हम लोग सबसे बेस्ट जो मर्म हम लोगों का होता है, हम लोगों को पता होता है हम लोगों का मर्म 3 प्रकार का होता है। आप लोगों को पता है मर्म 3 प्रकार का होता है। क्या क्या मर्म होता है, त्रिमर्म होता है हम लोगों का, ठीक है भाई। त्रिमर्म क्या क्या होता है, शीर, हृदय, अस्थि। तो इसलिए त्रिमर्म से ही व्याधि का डिस्क्रिप्शन करने का चरक जी आत्रेय पुनर्वसु का मतलब था। तो इसलिए त्रिमर्मर को कवर करने के लिए इन्होंने क्या किया, शीर, हृदय और बस्ती का डिजीज से ही शुरू किया। एक तो शीर रोग, एक हृदय रोग और बस्ती रोग बाद में वो इसी चैप्टर में बस्ती का व्याधि डिस्कशन किए हैं जिसका नाम है मधुमेह, ठीक है, जिसका नाम है मधुमेह। तो चरक जी ने 14 अध्याय और 15 अध्याय चिकित्सा प्रवृत्ति 15 अध्याय उपकल्पनीय, 14 अध्याय तो सूत्रस्थान का स्वेद अध्याय है, 13 अध्याय स्नेह अध्याय है, 14 अध्याय स्वेद अध्याय है, 15 अध्याय उपकल्पनीय अध्याय है, 16 अध्याय चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय है। ये सारे चीज को डिस्कशन करने के बाद 17 अध्याय में कियंत शिरस्य से चरक जी इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि त्रिमर्म में शीर, हृदय, बस्ती आता है और शीर जैसे पहला होता है इसलिए शीर से ही शुरू किया। और इसमें एंट्रेंस में आने वाला क्वेश्चन है कि ये जो 17 चैप्टर है इसमें टोटल अग्निवेश जी ने
टोटल 6 प्रश्न पूछे हैं पुनर्वसु अत्रेय को, और इनका प्रश्न क्या क्या हम लोग इसमें हम देख लेते हैं। इनमें हे अनघ, इसमें और एक क्वेश्चन आ सकता है, इसमें हे अनघ, अनघ का मीनिंग क्या होता है ना, इसमें अग्निवेश जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें अग्निवेश जी, महर्षि अग्निवेश जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं ना, पुनर्वसु अत्रेय को। और अनघ कौन है, अनघ होते हैं पुनर्वसु अत्रेय। पूछ रहे हैं कि हे प्रभु अनघ, हे प्रभु पुनर्वसु अत्रेय जी, प्रधान रूप से मनुष्य के सिर और हृदय, ये तो आपने हम लोगों तो कुछ कुछ डिस्कशन कर लिए, लेकिन गुरुजी आप मेरे को बताइए कि ये सिर रोग कितने प्रकार का होते हैं और ये अपने हृदय का रोग कितने प्रकार का होते हैं। ठीक है, और पुनर्वसु अत्रेय को ये भी क्वेश्चन पूछे अपने भगवान अग्निवेश ने कि बातादि के मान, बातादि के मान के बारे में पूछे। बातादि के मान मतलब क्या होगा ना, बातो पित्त कफ, बातो पित्त बात कफ कफ पित्त और सन्निपात, इनके मान यानी इनके परिणाम कितना है। ठीक है, बातादि के मान के बारे में बोले कि मान बातादि के परिमाण कितने हैं, और उन्हीं के विकल्प के बारे में बोले कि उन्हीं के क्षय स्थान वृद्धि आदि भेदों का क्या क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे। ठीक है, और क्या क्या पूछे न, क्षय कितने प्रकार का है ये भी क्वेश्चन पूछे, और कितनी पीड़काएं हैं ये क्वेश्चन पूछे। तो टोटल 6 प्रश्न पूछे महर्षि अग्निवेश ने पुनर्वसु अत्रेय को, और पुनर्वसु अत्रेय का नाम इधर यूज किया गया अनघ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, सिर और हृदय का रोगों को वर्णन करो, कितने प्रकार का है। द्वितीय प्रश्न का क्या हुआ कि दोषादि का मान कितना है। थर्ड का क्या हुआ, दोषादि का विकल्प क्या हो रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्षय कितने प्रकार का होते हैं और कितने प्रकार का पीड़काएं होती है। तो ये सारे चीजों को क्वेश्चन किसने पूछे, अग्निवेश ने पुनर्वसु अत्रेय को पूछे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ ना, जो मैं चीज आपको डिस्कशन कर रहा था कि अग्निवेश ने पुनर्वसु अत्रेय को ये जो चीज बोले कितने सारे रोग है, तो ये रोग को पहले हम लोग कैसे जानेंगे ना, पहले अगर जानेंगे तो ये रोग कैसे हो रहा है तभी तो रोगों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चरक जी ने बाद में ये श्लोका 113 नंबर श्लोका में उसको रखे थे, लेकिन मैं पहले इसीलिए लाया, रोग इसीलिए हो रहा है जो पहले मैं कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ाया कि जो कुछ आप आहार सेवन कर रहे हो, विहार अहित आहार विहार सेवन कर रहे हो, तो पहले हम अग्नि का पहले क्या होता है, पहले अग्नि का विकृति हो जाता है, फिर अग्नि का विकृति हो जाने के बाद अजीर्ण हो जाता है, अजीर्ण से आम का उत्पत्ति हो जाता है, आम कुष्ठ में पड़ा रहता है, और वही आमों के साथ क्या होता है, दोषों का प्रकोप हो जाता है, जैसे कि कफ पित्त बात सबका प्रकोप हो जाता है। वायु क्या करता है, वही दोषों को लेके कोष्ठ से लेके मतलब कोष्ठ से लेके कोष्ठ को छोड़कर पूरे शरीर में स्प्रेड करेगा। तो कोष्ठ को लेके पूरे शरीर में स्प्रेड करने का जो इवोल्यूशन, जो पैथोजेनेसिस होता है, दैट इज डन बाय षटक्रिया काल। षटक्रिया काल सुश्रुत का देन है। षटक्रिया काल में स्थान संश्रय अवस्था होता है जिसमें पूर्व रूप आ जाता है, और वही जो दोषों का कोष्ठ से लेके वायु, प्रकोपित वायु, कफ और पित्त और आमो, ये सारे चीजों को लेके जो पूरे शरीर में विस्तारित होता है, यह प्रोसीडियर को बोला जाता है दोष गति। यह प्रोसीडियर को बोला जाता है भाई दोष गति। तो दोष गति कितने प्रकार के होते हैं, यहां से दोष कितने प्रोसीडियर से जाएगा, यहां से दोष कैसे जाएगा, ग्रहणी से दोष कैसे जाएगा ऊपर की ओर ना। ग्रहणी का दोष जो गति करता है, सबका गति होता है। अगर मेरे को अभी भुवनेश्वर जाना है, अगर मेरे को दिल्ली जाना है, तो मैं रास्ते में जाऊंगा, फ्लाइट से जाऊंगा, मैं ट्रेन से जाऊंगा, मैं बाइक से जाऊंगा, तो किस प्रोसीड्यूर से जाऊंगा, वही है मेरा मतलब दोष, मेरा जाने का गति। ऐसे ही दोषों का भी कोष्ठ से शाखा तक, दोषों का भी कोष्ठ से जाके भी गति करता है, मूवमेंट करता है। और दोषों गति जो होता है वो श्रोतोष के माध्यम से होता है, और हमारा शरीर श्रोतोषमय होता है, और श्रोतोष के माध्यम से दोषों का जो गति होता है ये कैसे होता है। पहले दोषों का जो गति होता है भाई, दोषों का त्रिविध गति होता है। तो दोषों का त्रिविध गति क्या होता है, एक क्षय गति होता है, यानी दोषों का क्षय हो जाना, जैसे रसक्षय, रक्तक्षय, मांसक्षय, मेदक्षय, ये सारों का एक गति होता है। और एक स्थान होता है, एक वृद्धि होता है, दोषों का वृद्धि होता है, ये त्रिविध गति होता है दोषों का। हो गया, त्रिविध गति होता है, दोषों का क्षय, स्थान और वृद्धि, 3 प्रकार की गतियां होती है। और क्या क्या गति होगा, दोषों का ऊर्ध्व गति होगा, अधो गति होगा, तिर्यक गति होगा। इसी हिसाब से डिजीज भी है। अगर दोषों का ऊर्ध्व गति हो रहा है, ऊर्ध्व पर सिर रोग होगा, अधोगति होगा, बस्ती रोग होगा, मधुमेह आदि, तिर्यक रोग होगा। जैसे मैं आपको बोलूंगा एक चीज होता है तिर्यक गति का, अगर मैं आपको ये देखूं कि आपका जो प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, ये भी दोषों का तिर्यक गति के वजह से भी हो सकता है। और डिफरेंट काइंड के, जैसे मैं वात रक्त भी बोलूं, जैसे मैं अगर सॉरी रक्त पित्त बोलूं, तो इसमें भी क्या होता है, ऊर्ध्व तिर्यक गति दोषों का भी हो जाता है। तो ऐसे गति से डिजीज होता है। फिर क्या, त्रिविधा चापरा, और फिर 3 प्रकार का गति क्या होगा,
जो दोष प्रकोपित होगा वो दोष कुष्ठ को जाएगा, वो दोष शाखा को जाएगा, यह दोष मर्म को जाएगा, यह दोष अस्थि को जाएगा, यह दोष संधि को जाएगा। तो दोषों का क्षय स्थान वृद्धि 3 गति होगा, दोषों का ऊर्ध्व अर्ध तिर्यक गति होगा, दोषों का कुष्ठ से शाखा, शाखा मतलब क्या होता है, रक्तादो धातवस्तुक, यानी ये दोष जो था, ये दोष जो था ये अब कोष्ठ से, ये कोष्ठ से दोष क्या करेगा, शाखा में जाएगा, रस रक्तादि धातु में जाएगा। जब ये दोष रसव सुतस में प्रवेश कर जाता है तो क्या करेगा, रसव बहुत सुतस को दृष्टि तो विकार सृष्टि करेगा, जो कि बीमार स्थान में पूरे अच्छी तरीके से डिस्कशन किए। और रसव सुतुष्टि का लक्षण जो है वो चरक सूत्र स्थान 28 चैप्टर में अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। जैसे आप लोगों को पता होता है, क्लैब्य होता है, पांडु होता है, ठीक है, ऐसे सारे, जैसे रसव सुतुष्टि तो विकार, रक्तव सुतुष्टि तो विकार, मांसव, मैदव, अस्थिव, मज्जाव, शुक्रव, ऐसे हो जाते हैं। और वही दोष शाखा में गया, वही दोष अगर कुष्ठ में जाएगा, कुष्ठ क्या होगा ना, वही दोष जब कुष्ठ में जाएगा, यानी कुष्ठ क्या होता है, कुष्ठ पुनरुच्चित शरीर मध्य महानिम्न आमोपकाशस्थिति, यानी आमाशय में दोष गया। तो आमाशय में अगर दोष गया, ये अपना आमाशय हो गया, आमाशय में दोष होगा तो क्या होगा, आमाशय में श्वासकाश हिक्का रोग हो जाएगा। कैसे, मैंने एक ही चीज बोल रहा हूं, हर डिजीज का मूल स्थान जानना इसलिए बहुत जरूरी होता है, जो कि चरक ने बीमार स्थान में 13 सूत्र का मूल बताए हैं। आप लोग इसको पूरा अच्छी तरीके से रट लेना, जिसका जो मूल स्थान है वही डिजीज होता है। जैसे कि आमाशय में क्यों बोला ना, चरक जी ने श्वास काश श्वास हिक्का का जो मूल स्थान बोले पित्त स्थान समुद्र, और पित्त स्थान के जो कमेंट्री चक्रपाणी दिए हैं, पित्त स्थान का मतलब क्या होता है, आमाशय होता है। ये भी एंट्रेंस में आता है, पित्त स्थान का चक्रपाणी ने क्या बोले हैं, पित्त स्थान को चक्रपाणी ने आमाशय बोले। तो ये कुष्ठ में जाकर दोष रहेगा, अगर कुष्ठ में यानी आमाशय में दोष रह गया तो काश श्वास हिक्का आदि रोग उत्पन्न करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, वो दोष जब मर्म में रहेगा, मर्म में आप लोगों को बोल चुका हूं, सिर हृदय बस्ती, सिर रोग करेगा, हृदय रोग करेगा, और बस्ती में जैसे बस्ती रोग उत्पन्न करेगा। और अस्थि, मर्म अस्थि, अस्थि में विकार सृष्टि करता है, वो अस्थिगत विकार सृष्टि करेगा, जैसे अस्थि व सुतोष्टि हो जाएगा। अस्थि व सुतोष्टि में क्या होगा, दंतास्थि, नख भेद, ये सारे लक्षण आ जाएंगे। और इसके बाद क्या करेगा ना, अंश संधि, अस्थि अंश, और अंश प्रदेश में करता है, और क्या करेगा, मर्मास्थि संधिसु, सॉरी अंश में गलती से बोल दिया, मर्मास्थि संधिसु, संधि में करेगा। इसलिए संधि में जितने प्रकार का डिजीज हो सकता है, जैसे कि बात रक्त हो गया, संधि बात हो गया, आम बात हो गया, जितने सारे संधिगत विकार है वो सारे उत्पन्न कर देता है। तो मेरे बोलने का ये तरीका होता है कि हमारे अहित आहार विहार से ही मतलब दोषों का आम मतलब अग्नि का विकृति होता है, अजीर्ण होता है, आम उत्पत्ति होता है, फिर दोषों का प्रकोप हो जाता है, फिर दोषों में से वायु क्या करेगा, प्रकोपित दोषों को, वो आम को लेके कुष्ठ से लेके डिफरेंट मार्ग में जाएगा, कभी क्षय में जाएगा, कभी स्थान होगा, कभी वृद्धि होगा, कभी ऊर्ध्व होगा, कभी अध होगा, कभी तिर्यक होगा, कभी कुष्ठ में जाएगा, कभी शाखा में जाएगा, कभी मर्मा में जाएगा, कभी संधि में जाएगा। ये सारे में जाने के बाद जहां जाएगा वहां विकृति हो जाएगा। और जाने का मार्ग क्या है, स्रोतों से, और सुश्रुत ने उसको बोले षट क्रियाकाल के माध्यम से ही वो जाता है। जब यही दोष जाता है तब हम लोगों का क्या हो जाता है ना, दोषों का ऋतुओं के अनुसार भी गति हो जाता है, उसका दोषों का ऋतु के अनुसार भी गति होता है। जैसे कि चय प्रकोप प्रसम पिता दिनम जथा करो, यानी जैसे मैं बोलूं ग्रीष्म संचयत वायु, प्रकोप हो जाता है, ग्रीष्म काल के वायु संचय होता है, ग्रीष्म संचयत वायु, प्रावुट काल प्रकोप, प्रावुट में वायु का प्रकोप हो जाता है। वर्षा सूचित पितंग, वर्षा में पित्त का संचय होता है, शरद काल प्रकोप, शरद में प्रकोप हो जाता है। हेमंत निश्चित श्लेष्मा, हेमंत ऋतु में कफ का संचय होता है, बसंत कफ रोगाकृत, ये बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप हो जाता है। और ये होता है दोषों की ऋतुओं के अनुसार गति, मतलब किस ऋतु में किस दोषों का प्रकोप होता है, ये भी गति होता है, लेकिन ये प्राकृत गति होता है। जब चरक चिकित्सा में पढ़ा हुआ तो विकृत गति में डिस्कशन करूंगा। और दोषों की और दो गति होता है, प्राकृत गति तो एक हो गया, और एक होता है विकृत गति। विकृत गति क्या होता है, जैसे कि कालकृत ना होकर ये होगा, मतलब दूसरे काल में कुछ प्रकोप हो रहा है तो ये होगा दोषों का विकृत गति, ठीक है। फिर हम लोग जो क्रिया शरीर की दृष्टि से दोषों का जो गति होता है वो होता है 9 प्रकार का, इसको अच्छी तरीके से याद रख लो। और आशय पकड़ से यानी दोषों की गति क्या होगा, आशय पकड़ से दोषों की गति कितना होगा, 10 प्रकार का हो सकता है। इसमें जब दोषों का गति होगा तो फिर क्या होगा न, पिता देव उष्मण पक्तिर नरणाम उपजायते तच्च पीतंग प्रकोपितंग विकारन कुरुते वहन। ये वेरी इंपोर्टेंट है, उष्मण ये एक एंट्रेंस में आता है, टीका जहां लगाया गया, टिक जहां लगाया हुआ एग्जाम में आता है, विकारन कुरुते वहन ये एग्जाम में आएगा। चलो इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं कि पित्त का गति होगा तो क्या होगा
ना प्रकृतिस्थ पित्त का जो जब गति होता है तो पित्त का उष्मा से मनुष्य के आहार का पाचन होता है, और जब वही पित्त प्रकोपित हो जाता है तो अनेक पित्त जो विकारों को उत्पन्न करता है, अनेक पित्त जो विकारों को उत्पन्न कर देता है, वही होगा पित्त का गति, जिसको चरक जी ने अच्छी तरीके से वर्णन किया कि पित्तादेव उष्मणा पक्तिर नरणाम उपजायते। पित्त उष्मता से, पित्त का गुण क्या होता है? सस्नेम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम अम्लम सरंकटु। तो पित्त का उष्मता से क्या होता है ना, जो आहार सेवन करते हैं उसका परिणमन होता है, और वही पित्त जो प्रकोपित होता है तो विकारण कुरुते बहुन। ये आएगा आपका एग्जाम्पल, रेफरेंस पूछा जाएगा किसके प्रकोप के बारे में, किसके गति के बारे में वर्णन किया जाता है। ऐसे ही प्राकृतस्तु बलंग शेषमा, जो कफ होता है प्राकृत अवस्था में रहेगा, ये शरीर के लिए बड़ा होगा और बड़ा होता है, ठीक है। और विकृतिस्थ कफ जो होता है ये क्या होता है, मड़ होता है, और कफ का मड़ को हम लोग बलगम बोलते हैं, स्पुटम बोलते हैं। कफ का जो मड़ होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कफ का जो मल होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको हम स्पुटम बोलेंगे, ठीक है। और सच एवं उजह स्मृत काय सच पापम उपदिश्यते, इसको अच्छी तरीके से याद रख लो। ये काफी बार आपके रेफरेंस में आ जाता है कि प्रकृतिस्थ कफ बलकारक होता है और विकृतिस्थ कफ मलकारक होता है, जो होता है बलगम या स्पुटम। प्राकृतिक कफ को हम लोग शरीर का ओज बोलते हैं, प्राकृतिक कफ जो होता है शरीर का ओज होता है, और विकृत कफ को पापो बोलते हैं, यानी रोगो बोलते हैं। ये भी एंट्रेंस में आ जाता है। तो विकृत कफ को मड़ या पापमा बोला जाता है, ठीक है। विकृत कफ को मड़ या पापमा बोला जाता है। तो बात की गतियां क्या होता है, ये भी रेफरेंस आता है, सर्वा ही चेष्टा बात है ना, ये रेफरेंस आपका बार बार आता है। सर्वा ही चेष्टा बात है ना, सब प्राणो प्राणिनां श्रुतो, ऐसे करके बहुत सारा श्लोका है। वायु जो होता है ये प्राणियों का प्राण होता है। सब प्राणो प्राणिनां श्रुतो वायु, ठीक है। सब प्राण प्राणिनां श्रुतो वायु, पानीयं प्राणिनां प्राण, जल के बारे में बोला गया है, ठीक है। और ऐसे अन्न के बारे में बोला गया, वो प्राण है, ठीक है। तो ऐसे करके बात की गतियां जो होता है, बातों जब गति मतलब स्वस्थ शरीर में बातों प्राकृतिक अवस्था में रहता है तो सारे चेष्टाएं करता है, सभी प्राकृत बातों द्वारा चेष्टाएं होता है। और वही बात जब प्राणियों का जब विकृत हो जाता है तो प्राणियों का नाश कर देता है, रोग उत्पन्न कर देता है। बोला गया तेनैव रोगा जायन्ते तेन च उपरुध्यते, ये अगर विकृत हो जाता है तो रोग उत्पन्न करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि दोषों की इतने सारे गति होने के बाद क्या होता है, हमारे जो जो व्याधि में बोला ये सारे व्याधि हो जाते हैं। ये हो गया अपना व्याधि का मतलब इवोल्यूशन होता है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में आने वाला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल भी इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, स्थानापकर्ष। तो व्हाट डू मीन बाय स्थानापकर्ष? ये स्थानापकर्ष क्या होता है? स्थानापकर्ष क्या होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, ये स्थानापकर्ष होता है। जैसे मैं समझा देता हूं, प्रकृतिस्थं जदा पीतंग मारुत शश्मणख्य है, इसको अंडरलाइन कर दो। प्रकृतिस्थं जदा पीतंग मारुत शश्मणख्य, अर्थात जब कफ के क्षीण होने पर प्रबुद्ध वायु प्रकृतिस्थ अर्थात सम अवस्था में स्थित पित्त को उसके स्थान से लेकर शरीर के जिस जिस भाग में ले जाता है। कफ अगर जहां, एक कंडीशन है, कफ जहां क्षीण है, ठीक है, कंडीशन क्या है, जहां कफ क्षीण है और जहां वायु, और जहां वायु कफ का क्षीण होने पर बढ़ा हुआ वायु, ठीक है, जहां कफ क्षीण होता है और वायु क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है। कफ क्षीण होता है, वायु बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, कफ क्षीण वायु बढ़ा हुआ। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सम अवस्था में स्थित पित्त को वायु क्या करेगा, समान अवस्था में स्थित जो पित्त रहता है, जो कि इक्विलिब्रियम स्टेज में जो पित्त है, उसको क्या करेगा ना, पित्ताशय से वो वायु पित्त को लेके क्या करेगा, शरीर के जिस भाग में ले जाता है, तब वहां वायु के कारण स्थिर न रहने से अनवस्थित वह पित्त उस शरीरावयव में वेद यानी फटने की सी पीड़ा, दाह थकावट यानी दुर्बलता, श्रमो दौर्बल्य उत्पन्न कर देता है, ठीक है। उसमें क्या करेगा, भेद करेगा, दाह करेगा, श्रम करेगा यानी थकावट, और दुर्बलता उत्पन्न करेगा। इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट श्लोका। इसका फॉर्मूला है VDSD। क्या क्या VDSD मतलब भ्रम होगा, भेद होगा, दौर्बल्य होगा, श्रम होगा, दाह होगा, ठीक है। क्या होगा, भेद होगा, दाह होगा, V फॉर भेद, D फॉर दाह, S फॉर श्रम, D फॉर दौर्बल्य, VDSD। तो स्थानापकर्ष होता है 4 प्रकार का, स्थानापकर्ष होता है 4 प्रकार का। जब
कफ जब क्षीण अवस्था में रहता है और वायु प्रकोपित होकर क्या करता है, प्रकृतिस्थ पित्त को अपने स्थान से हटाकर वायु जहां रख देता है वहां का व्याधि उत्पन्न कर देता है और वहीं पर टिपिकली 4 व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं। VDSD, वेद दाह श्रम दौर्बल्य, दैट इज कॉल्ड स्थान अपकर्ष लक्षण। ये दोषों के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, दोषों के क्षय वृद्धि समूह को जानने की विधि क्या होगा। हम लोग कैसे जानेंगे कि दोषों का ऐसे हो रहा है, बल्कि बड़े में बातादि दोषों जथाबड़ अपने अपने लक्षणों को प्रकट कर देते हैं, क्षीण दोष अपने अपने लिंगों को छोड़ देते हैं और समदोष अपना कार्य करते हैं। तो हम लोगों को इसको जानने का ये रेफरेंस क्वेश्चन आ जाता है, ये रेफरेंस आता है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रख लेना कि दोषा प्रवृद्धा स्वलिंगं दर्शयन्ति जथाबलम क्षीणा जहति लिंगं स्व समा स्वं कर्म कुर्वते। यानी ये बड़े हुए बातादि दोष अपना जथाबल अपना अपने लक्षणों को प्रकट करेंगे, क्षीण दोष अपने अपने लिंगों को छोड़ देते हैं, दोषों क्षीण हो गया है तो लक्षण को छोड़ देंगे, और समावस्था में जो दोष रहेगा तो वो समान अवस्था मेंटेन करेगा। तो मेरा कहने का इतने सारे चीजों का मतलब यही है कि पहले हम लोग अहित आहार विहार सेवन करने से ये दोषों पहले अपने शरीर में अग्नि का मतलब विकृत हो जाता है, मंदाग्नि होने के बाद हमारा आमो प्रोड्यूस हो जाता है, अजीर्ण होता है, अजीर्ण से आमो होता है, उसी में से दोषों का प्रकोपित हो जाता है और दोषों प्रकोपित हो जाने के बाद वो आमों को कोष्ठ से लेके डिफरेंट मार्गों में छोड़ देता है वायु, और उसी के साथ पित्त और कफ भी जाते हैं, जो जो मार्ग में जाते हैं वही वही मार्ग में विकार हो जाता है, और जो मार्ग है वो स्रोतों से षटक्रिया के माध्यम से वो सारे चीज होता है। ये पूरा टोटल जो मैं बोला ये डिजीज का इवोल्यूशन प्रोसीड्योर है। और ये जो डिजीज का हम लोग अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई डिजीज क्या होता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसका केयर प्लान कैसे बनाएंगे। डोंट वरी, ये वेरी इजी प्रोसीड्योर है। जो अपना चरक ने विमान स्थान में जो अपने 13 श्रोतस बोले हैं और उसका जो जो लक्षण चरक श्रोतस्थान 28 में कुछ और कुछ विमान है, सारे श्रोतस का मूल स्थान, उसका लक्षण और श्रोतदृष्टि का जो चिकित्सा सूत्र, इस सारे को 2 पेज में पकड़ में रखो, उसी से बन जाएगा आपका डायग्नोसिस, उसी से बन जाएगा आपका ट्रीटमेंट, जो विमान स्थान में मैं आपको कवर करूंगा। तो आइए दोषों की ये गति हो जाने के बाद कैसे व्याधि उत्पन्न होते हैं, और जैसे कि ये चैप्टर का नाम किया तो शिरस्य अध्याय था, तो इसलिए पहले जो दोषों का गति होगा, आप अब सोचो ऊर्ध्व अध तिर्य गति था और कोष्ठ शाखास्थि मर्माणी संधि गति था, तब शिरोरोग से उत्पन्न हो रहा है, मतलब दोषों का गति कहां हुआ है, अभी दोषों कहां में है, मर्म में है, दोष अभी भाई मर्म में है। तो मर्मास्थि संधि, मर्म क्या होता है, शिर हृदय बस्ती। तब दोषों का जब गति, ऐसे हम लोग डायग्नोसिस करेंगे दोषों किस लेवल पे है, लक्षण देकर डायग्नोसिस करेंगे। दोषों का गति अगर सिर आ रहा है तो आपको पता है सिर त्रिमर्म में आता है, तो डेफिनेटली दोषों का गति अब मर्म तक गया है, और दोषों का गति एक मर्म भी है, कोष्ठ से मतलब ये बोला गया है शाखा से जो कोष्ठ मर्म शाखास्थि संधि ये बोला गया है। ठीक है, तो अब शिरा रोग का निदान हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो एंट्रांस में इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को डिस्कशन करेंगे कि जब संधारणा दिवा स्वप्नात् रात्रो जागरणात् मतात् उच्च भाष्य अवश्यात प्राग वातात अति मैथुनात्। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस श्लोक का याद रख लो, ये एग्जाम में आता है। ये होगा शिरोरोग का निदान। ये द आधार अर्थात आधारण वेगों को रोकने से, दिन में सोने से, रात में जगने से, मादक वस्तुओं का बहुत सेवन करने से, जोर से चिल्लाने से, और अवश्य ना ओस पड़े रहने से, जैसे ओस जोश सारे होता है ना, इसमें अगर आपके शरीर में बहुत एक्सपोज होने से, और प्रभात यानी पूर्वी हवा, जिस डायरेक्शन से हवा आ रहा है उसी डायरेक्शन से आप स्पीड में जाओगे, तो इसी से क्या होगा, अपना शिरोरोग उत्पन्न हो सकता है। और क्या होगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बातादय प्रकुप्यंती। तो ये शिरोरोग में क्या होता है भाई, बातादय प्रकुप्यंती, यानी त्रिदोष वायु आदि दोष प्रकोपित हो जाते हैं, इसमें त्रिदोष प्रकोपित हो जाते हैं। और शिरस्तम तो कहा शिरस्यन्न च दुष्यंती, और इसमें क्या होगा ना, बातादि त्रिदोष प्रकोपित हो जाते हैं, और शिरस प्रदेश में ये क्या करेंगे ना, शिरस्य अस्रंग, और शिरा प्रदेश में उपस्थित जो रक्त होता है उसको दूषित कर देते, तो शिरा मतलब शिरोरोग उत्पन्न कर देते। तो इधर क्या हो रहा है ना, इधर कोष्ठ, इधर मर्म और शाखा में दोषों गति हो रहा है कि नहीं बोलो। तो मैंने बोला दोषों का गति हो रहा है, अब कोष्ठ में दोषों का, ये सारे संधारणा दिवा स्वप्न मतलब ये रात्रि जागरण, ये सारे निदान सेवन करने के बाद सेम प्रोसीड्योर हुआ। अपने शरीर में क्या हुआ, अपने शरीर में अग्नि का विकृति हुआ, अजीर्ण हुआ, आम प्रोडक्शन हुआ, आम के बाद दोषों का प्रकोप हो गया, और वही दोषों का गति हो गया।
कहाँ गति हुआ? शिरोरुग मतलब मर्म प्रदेश में अगर कोष्ठो शाखास्थि मर्माणी संधिवर, कोष्ठ मतलब मर्म में अगर जाएगा तो मर्म में त्रिमर्म शिरा हृदय बसती है, तो शिरा मर्म में जाएगा तो शिरागत विकार उत्पन्न करता है। और इसमें लिखा है शिरा में मतलब बातादि दूषित शिरा में प्रदेश, शिरा प्रदेश में उत्पन्न मतलब स्थित रक्त को दूषित करता है। तो रक्त क्या होता है ना? शाखा होता है। मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हूं कि कोष्ठ मर्मास्थि संधव यानी शाखा मर्मास्थि संधव शाखा में जाता है। शाखा क्या होता है ना? शाखा होता है रक्तादो धातुवस्तु यानी रक्त व सूतस को भी वो दूषित करता है। तो इधर क्या मन व सूतस को भी दूषित करता है और रक्त व सूतस को भी ये सारा निदान सेवन करने से दूषित करता है। तो इधर हम लोगों का मेन चीज जो एग्जाम में आने वाला चीज होता है ये तो हो गया अपना निदान, और एग्जाम में आने वाला जो चीज होता है बातादो प्रकोपित यानी त्रिदोष प्रकोपित होता है। और इसमें दूसरे क्या है? रक्त प्रकोपित हो जाता है और रक्त व सूतस भी दुष्टि हो जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद शिरो इतना बड़ा चीज होता है और उसके अगर डिजीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली सिर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये जो सिर अपना होता है, ये सिर जो होता है ये रेफरेंस आता है अपना किस महर्षि ने सिर के बारे में डिस्कशन किए? प्राणा प्राणाभूतं जत्राश्रिता सर्व इंद्रियाणि च जद उत्तम अंगांगनम शिरस्तद अविद्यते, यानी जिसमें प्राणियों का प्राण आश्रित है और सभी ज्ञानेंद्रिय जिसमें आश्रित है, ये शरीर के सभी अंग का उत्तम अंग पाठ है, तो दैट इज कॉल्ड ए शिरो। प्राणा प्राणाभूतानम जत्राश्रिता, प्राणियों का प्राण जहां पे आश्रित होता है, सर्व इंद्रिय जहां पे आश्रित होते हैं, जद उत्तम अंगंगनम और अंग में जो उत्तम अंग होता है दैट इज कॉल्ड ए शिरो। ये 3 पॉइंट ही होता है, तो भाई इसको अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद शिरा के रोगों का परिचय अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो शिरा रोग का परिचय होगा। इंपॉर्टेंट चीज शिरो भ्रम इंपॉर्टेंट है, अर्धित इंपॉर्टेंट होता है, और गड़मन्य हनुग्रह होगा। विविधश्च अपरे रोगा बातादि कृमि संभव, विविधश्च अपरे रोगा बातादि कृमि संभव, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अंडरलाइन कर दो। शिरो भ्रम मतलब हेड रीलिंग होता है। अर्धित मतलब आपको पता होता है, अर्धित रोग तो बहुत, अर्धित रोग ऐसा भी होता है ना, जैसे कि अर्धित रोग जो होता है वो वही वात व्याधि के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन किया गया अर्धित, और वो अर्धित रोग जो होता है वो शिरोमर्म रिलेटेड अर्धित होता है। अगर उसको थोड़ा मैं हटकर मॉडर्न की ओर जाऊं तो मॉडर्न में उसको फेशियल मतलब फेशियल पाल्सी के साथ डिस्कशन किया गया है, ठीक है। फेशियल पाल्सी के साथ कंपेयर किया गया है, जो कि 7th क्रैनियल नर्व इफेक्ट होता है इसमें, ये भी एग्जाम में आता है। जो मैं बोल रहा हूँ सारे इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। 7th क्रैनियल नर्व जो कि ब्रेन में ही होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, ब्रेन में होता है, सेंट्रल ब्रेन में होता है। तो वही में अफेक्ट होने के बाद वो 7th क्रैनियल नर्व अफेक्ट होने के बाद वो पाल्सी होता है, फेशियल पाल्सी होता है, उसी को अर्धिता हम लोग बोलते हैं। और अर्धिता लेकिन फेशियल पाल्सी का कंपेयर किया, लेकिन अर्धिता जो है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से पूरा डिफरेंट होता है, ये पूरा डिफरेंट होता है, वो मैं बाद में डिस्कशन करूंगा वातों व्याधि चिकित्सा के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं हल्का से इसका इंडिकेशन इसलिए दिया कि वो जो फेशियल नर्व होता है वही भी निकलता है अपने सिर प्रदेश से, तो इसलिए उसको कितना सिमिलरिटी है देखो, ठीक है। इसके बाद गड़ मन्या हनुग्रह हो जाता है, और विविधश्च विभिन्न प्रकार का रोग होगा, जो कि त्रिदोष बातादि दोष और कृमि संभव, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं ये शिरा रोग में दूसरे क्या होगा, ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूं भाई, त्रिदोष और रक्त होगा, ठीक है। बातादि दोष में श्लोका में बताया था, और रक्त धातु रक्त और सूतस भी उसमें तुष्टि हो रहा था। और शिरा रोग चरक ने 5 प्रकार के बोले हैं, और माधव निदान सुश्रुत ने 11 प्रकार के बोले, भागवत ने उसको 10 प्रकार के बोले हैं, ठीक है। उसको याद रखना। इनके अतिरिक्त बातादि दोषों से और कृमियों से उत्पन्न होने वाले अनेक रोग होगा, जो मैं आपको डिस्कशन करूंगा। तो 5 प्रकार का शिरा रोग का प्रस्तावता मैं आपको रखूंगा। पहले मैं डिस्कस करूंगा बातादि शिरा रोग का निदान क्या क्या होगा, भाई इसको अच्छी तरीके से याद रख लो। उच्च भाषे अति भाष्य भाषा, जब मैं बहुत बकबक कर रहा हूँ, बहुत जोर से चिल्ला रहा हूँ, मेरे को बातादि शिरा रोग होने का पॉसिबिलिटीज है। जो टीचर लोग होते हैं बहुत बार बहुत बकबक करते हैं, उनको बातादि शिरा रोग होता है, वही बोला गया। उच्च भाषे जो बहुत जोर से चिल्लाते हैं, तीक्ष्ण पाना जो तीक्ष्ण पाना करते हैं, प्रजागरत जो रात जग के, मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए रात्रि जागरण करके खुद पढ़ता हूँ फिर पढ़ाता हूँ, तो मेरे को भी सिर रोग होने का पॉसिबिलिटीज होता है, ठीक है। शीत और मारुत संस्पर्श, जो शीत और मारुत को संस्पर्श में आते हैं, वैवाहिक वेग निग्रह, और जो मैथुन कर्म में विलीन हो जाते हैं और जो वेग को निग्रह करते हैं, रोक देते हैं। भाई देखो ये श्लोका जो होता है डायरेक्ट आंसर है उसका, वो डायरेक्टली उसका एक्सप्लेनेशन है, उसको समझाने की कुछ जरूरत नहीं है, जो कि रॉकेट साइंस इतना नहीं है वो, ठीक है। शिरोगत शिरा बुद्ध वायु अभिषेक कुपित, शिरो में जो सिर प्रदेश में जो अपना शिरा होता है, वही शिरा में वायु प्रकोपित हो जाता है। शिरा मतलब क्या है? स्रोतों से। शिरा क्या है? रक्त व श्रुतस में वायु प्रकोपित हो जाता है, तब क्या होगा? शूल महत्व से, और इसमें बहुत शूल
उत्पन्न हो जाता है। दैट इज आवर मेन क्वेश्चन। तो इसमें एग्जाम में आने वाला जो चीज होता है कि शूल महत्व से, जिनमें ज्यादा शूल किसमें होता है ना, वात शिरोरोग में। बाकी चीजों को आप अच्छी तरीके से याद रख लो। फिर इसके बाद वेरी वेरी इंपोर्टेंट होता है वात शिरोरोग का लक्षण क्या होगा, निस्तुद्यते भ्रूसंग संको घाटा संभिद्यते जथा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि शंखस्थलों में तोदो होता है। घाटा मतलब क्या, घाटा मतलब क्या, गर्दन का पीछे भाग में यानी सर्वाइकल रीजन में पेन होता है। आपको पता होता है ये जो सिरागत रोग होता है, जब मैं अगर थोड़ा कंपैरिजन आपको करूं कि आपका पता होता है एसटीएन यानी हाइपरटेंशन में क्या होता है, ये एक सिरोगत विकार होता है जिसमें प्रेशर बढ़ जाता है, और ये सिरोगत विकार हाइपरटेंशन में यही होता है। क्या होता है ना, घाटा संबिंदते होता है हाइपरटेंशन में। यानी पेशेंट आके पर्टिकुलरली बोलते हैं कि सर मेरा का ये ऑसिपिटल रीजन में दर्द होता है, यहाँ पे मेरे को दर्द होता है, तो घाटा संबिद्यते तदा भ्रू मध्य ललाटम, और ये भ्रू मध्य ललाट प्रदेश में भी दर्द होता है। तपति व अतिवेदनम, इसमें भ्रू मध्य ललाट और में क्या होता है, तपति व अतिवेदनम, यहाँ पे बर्निंग टाइप का बहुत सूड़ होता है। ये बात जो सिरोरोग का लक्षण में बोल रहा हूँ, ये सारे ब्लड प्रेशर के साथ कंपेरेटिव है, मतलब अपना हाइपरटेंशन के साथ कंपैरिजन। हाइपरटेंशन के रोगी ऐसे बोलते हैं कि मेरे शंख प्रदेश में दर्द होता है, मेरे पीछे गर्दन रीजन में दर्द होता है, और मेरे भ्रू मध्य में दर्द होता है। ठीक है, कभी कभी तो हाइपरटेंशन में मिडनाइट हेडेक होता है। इट्स ए टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरटेंशन, मिडनाइट हेडेक। ठीक है, आधे रात को ये हेडेक होता है, मिडनाइट हेडेक होता है। ठीक है, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद रख लो, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए मिडनाइट हेडेक किसमें होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, घुरनाती व सीरा। और कोई सारे जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है वो क्या बोलते हैं, सर मेरे को लग रहा है मैं सो रहा हूं और मेरे को लग रहा है जैसे कि ये फैन घूर रहा है, मेरा बिल्डिंग घूम रहा है, तो घुरनाती व सिर यानी इनका सिर एक्चुअली घूमता रहता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्फुरति शिरा जालंग स्तम्यते शिरोघरा, तो स्फुरति शिरा जालंग स्तम्यते शिरोघरा, इसमें क्या स्फुरति 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 अति शिरा जालंग, इनमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स जो होते हैं ये पूरा एकदम एनगर्ज हो जाते हैं और टिक 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 करते हैं, ब्लड वेसल्स पूरा स्पूर्ण हो जाता है, जैसे लगता है ब्लड वेसल फट जाएगा। तो ये होता है बाती का लक्षण। और इसमें क्या होगा ना, स्तम्यते जो शिरोघोरा, और इसमें क्या होता है ना, ऐसा फील होता है कि गर्दन अकड़ जाती है, और स्निग्धम उष्णम उपसेतच शिरोरोग होने लगा। और ये वाला चीज इंपॉर्टेंट होता है, इसको थोड़ा हल्का से अंडरलाइन कर दो और टीका लगा लो। और जिसको ग्रीवास्तंभ या मन्यास्तंभ हम लोग कहते हैं, बातज शिरोरोग में स्निग्ध एवं उष्ण औषध आहार विहार सुख देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बातज शिरोरोग में स्निग्ध और उष्ण आहार विहार थोड़ा राहत देता है। इसमें इसीलिए लिखा गया स्निग्ध उष्ण उपसेते, स्निग्ध और उष्ण आहार विहार जो होता है वो अपने को थोड़ा राहत देता है, अपने को थोड़ा खुशी देता है, और ये सारे पेन से, दर्द से हमको राहत मिल जाती है। ठीक है, तो पित्त शिरोरोग का निदान क्या रहेगा ना, पित्त शिरोरोग का निदान क्या रहेगा, पित्तंग सरति संदुष्टम शिरोरोगाय कल्पते। इसको आप पित्त कारक आहार, ये कॉमन सेंस लगाना है, पित्त कारक आहार सेवन करने के बाद ही पित्त शिरोरोग होता है, जैसे कि कटु अम्ल लवण क्षार मध्य क्रोध, ये सारे चीजों को सेवन करने के बाद पित्तज शिरोरोग उत्पन्न हो जाता है। इसको अच्छी तरीके से याद रख लेना, पित्तंग सरदि संदुष्टम। और मैंने जैसे बोला हूं क्या, वर्षा सूचित पित्तंग, वर्षा काल में पित्त का संचय होता है, शरद काल में पित्त का प्रकोपित हो जाता है। तो इसलिए पित्तंग क्या होता है ना, पित्त जब अगर ऋतु में अगर पित्त का प्रकोप होता है, या यही आहार को सेवन करने से पित्त का अगर प्रकोप हो रहा है, तो ये प्रकोपित पित्त क्या करेगा, सिर प्रदेश में प्रकोपित होगा। पित्तंग शिरसी संदुष्टम शिरोरोगाय कल्पता, शिरोरोग उत्पन्न कर देता है। पित्त शिरो का लक्षण क्या होगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, दह्यते वेरी इंपोर्टेंट अंडरलाइन करो, रुज्यते वेरी इंपोर्टेंट अंडरलाइन करो, शीत सुसूयते ये अंडरलाइन होता है, यानी दाहन करता है और रुजा करता है, और ये क्या करता है, बहुत अपना आंखें जल जाती है, प्यास लगती है, चक्कर आने लगते हैं, पसीना आने लगता है। ठीक है, तो ये सारे होगा दह्यते चक्षुषी तृष्णा भ्रम सुदश्च, ये सारे पित्तज शिरोरोग के लक्षण है जो इंपोर्टेंट है, मैं इसको अंडरलाइन कर दिया। कफज शिरोरोग का लक्षण क्या होगा ना, ये सबसे इंपोर्टेंट चीज होता है कि कफज शिरोरोग का लक्षण बोलने से पहले हम लोग निदान जानेंगे। आस्य सुखे स्वप्न सुखे गुरु स्निग्ध अति भोजन, ये बहुत इंपोर्टेंट है। आस्य सुखे स्वप्न सुखे गुरु स्निग्ध अति भोजन, क्वेश्चन आ जाएगा, आस्य सुखे स्वप्न सुखे गुरु स्निग्ध अति भोजन हैज बीन टोल्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, प्रमेह, मधुमेह, शिरोरोग, अमवात किसके बारे में बोला गया,
तो ये होगा सिर कफ सिर रोग का निदान होगा। आस्य सुखी स्वप्न सुखी, आस्य सुखी मतलब एक जगह पे बैठ रहना, स्वप्न सुख खाली सोना मतलब स्लीपिंग करना, गुरु स्निग्ध अति भोजन है, गुरु स्निग्ध अति भोजन करना, ये कफ सिर रोग का ही निदान हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना भाई, वो एमसीक्यू भी आपका आएगा और आसरेशन रीजनिंग भी आएगा। मैं एक एक करके सारी चीज आपको दिखाऊंगा, आसरेशन रीजनिंग क्वेश्चन कैसे आपका आएगा। ठीक है, जैसे कि कफ सिर का लक्षण कैसे होगा, मंदरोजंग, मंदरोज हल्का हल्का सूढ़ होता है, सुप्तंग होता है, स्तिमित भारिकम। और इसमें क्या होता है, मंदरोजा होता है, हल्का हल्का मतलब सूढ़ा होता है, और ज्ञानेंद्रिय में सुप्तता आ जाता है, जैसे कि नमनेस आ जाता है, अचेतना आ जाता है, स्तिमित भारिकम जैसे ऐसा लगता है गीला कपड़ा घिरे हुए। तो आसरसन रीजनिंग इसी से भी पूछा जाता है। कैसे, जैसे कि पूछा जाता है कफज ऐसे पूछा जाएगा कि आसरेशन में एक ऑप्शन ए में आपका आ जाएगा कि मंदरूजंग तेना सुप्तंग स्तिमित भारिकम, ये अपने ए में आ जाएगा। ठीक है, ये ए गया आ जाएगा। बी में क्या आ जाएगा, आस्य सुखे स्वप्न सुखे गुरु स्निग्ध अति भोजने। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन में आ जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी में आ जाएगा ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट। और क्या होगा, एक ये में रहेगा कि ये रहेगा कफ सिर रोग का ये लक्षण है, एक ऑप्शन में रहेगा आस्य सुख स्वप्न सुख गिरीश गुरु स्निग्ध भोजन करने से कफ सिर रोग होता है, और एक ऑप्शन में रहेगा मंदरुज सुप्त स्तिमित भारिकम टाइप का कफ सिर रोग का लक्षण आ जाता है। समझे आप, किसमें आएगा, रीजनिंग आसरेशन में आएगा, आस्य सुख स्वप्न सुख गुरु स्निग्ध अति भोजन के कारण मंदरुज सुप्त स्तिमित भारिकम का कफ सिर रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, एंड ऑप्शन बी इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। तो आप लोग अगर दोनों श्लोक को याद रखोगे तो कर पाओगे आराम से। तो ऐसे भी मैं बहुत सारी चीजों आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे करके, आप टेंशन मत लो। ठीक है, सान्निपाती का सिर का लक्षण क्या आएगा ना, इसमें मद आएगा और तृषा आएगा। इसमें बातों की विकृति से सूढ़ चक्कर आना, पीतों की विकृति से दाह होना, मद होना, बार बार प्यास लगना, कफ की विकृति में शरीर में भारीपन तंद्रा आना, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रख लो। ठीक है, फिर कृमि जनित सिर रोग का निदान क्या होगा ना, तिल खीर गुड़ जीर्ण पूति संकीर्ण भोजन, ये याद रख लो आप। जहां पे कृमि वर्णन है मतलब तिल खीर गुड़ यही है 100% सब जगह पे ये निदान होगा। और क्या होगा, पाप कर्म भी एक निदान होगा, और विवत्स लक्षण, ये बहुत खतरनाक लक्षण इसमें आ जाता है कृमिजन्य सिर रोग में। मतलब सिर रोग में खतरनाक चीज होता है, विवत्स जनयंती शिरोरोगम जाता है, इसमें विवत्स लक्षण आ जाता है कृमिजन्य शिरोरोग में। और कृमिजन्य शिरोरोग का लक्षण क्या होगा, सारे चीज अंडरलाइन कर दो। अपना व्यध छेद रुज कंडु शोफ दौर्गंध्यात उखितम, इसमें क्या होता है, व्यध छेद लिखा गया, व्यधन टाइप का, सुई मतलब सुई से ये करने का जैसा, छेदन टाइप का, रुजा सामान्य पीड़ा, खुजली होता है, शोफ होता है, बहुत दुर्गंध होती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृमिजन्य सिर रोग का ये रहेगा लक्षण। और कृमिजन्य सिर रोग आप लोग अगर देखा होगा, देखो ऐसे टाइप का कृमि मिलता है, ब्रेन में भी ऐसे टाइप का कृमि मिलता है। ठीक है, तो ये रहेगा अपना कृमिजन्य सिर रोग। इसके बाद बाघवट दोषों के सम्मिश्रण से ही कृमियों की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। जैसे लिखे संकीर्ण भोजने मूर्धनि, ठीक है, क्लेदिते, संकीर्ण भोजने मूर्धनि क्लेदिते रुधिरामय को पीते सन्निपात जो जायते मूर्धनि जंतव, अंडरलाइन कर दो इसको, किसने बोला है, किसके बारे में बोला गया है, मतलब ये शिरगत कृमि के बारे में वर्णन किया गया है। और हृदरोग के बारे में वर्णन करेंगे हम लोग अभी, शिरा हृदय बस्ती हृदरोग के बारे में वर्णन करेंगे। हृदरोग चारक और बागवट ने उसको 5 प्रकार के वर्णन किए, सुश्रुत उसको 4 प्रकार में हृदरोग वर्णन किए। तो बातज हृदरोग जो रहता है उसका निदान क्या होगा ना, बातज हृदरोग का निदान ये होगा कि शोक बहुत चिंता करना, उपवास करना, रूखा सूखा आहार का सेवन करना, अत्यंत व्यायाम का सेवन करना, थोड़े भोजन करने के से। और ये क्या होता है, कम भोजन करने से क्या होगा ना, बढ़ा हुआ वायु का प्रकोप हो जाता है, और वो वायु जाके हृदय में प्रवेश कर जाता है और अत्यंत पीड़ा को पैदा करता है, दैट इज कॉल्ड बातज हृदय। ठीक है, और बातज हृदय का लक्षण क्या होगा ना, बेपथु वेस्टर्न स्तंभ प्रमोह शून्यता दर। ठीक है,
बेपोतु होगा, बेष्टनो होगा, स्तंभो होगा, प्रमो होगा, शून्यता होगा, दर होगा, पीड़ा होगा। हृदय बाता तुरे रूपं जीर्णे च अत्यर्थ वेदना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीर्णे च अत्यर्थ वेदना। ऐसे टाइप का कंफ्यूजन हम लोगों को ऑप्शन में आज, जीर्णे तो अत्यर्थ वेदना किसके बारे में बोला गया है? बातेज हृदय के बारे में बोला गया है। ऑप्शन बी ने परिणाम शुल, सी में आएगा अपना गुणम, फिर डी में आएगा अन्नद्रव्य शुल। ऐसे आपको ऑप्शन में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीर्णे च अत्यर्थ वेदना, जीर्ण के बाद वायु प्रकोप होगा, जीर्ण के बाद वायु प्रकोप होता है, इसलिए वो क्या होगा? अत्यर्थ वेदना हो जाता है। ठीक है, तो बेपथु, वेष्टन, स्तंभ, प्रमेय, शून्यता, धर, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है इसमें क्वेश्चन में आता है जीर्णे च अत्यर्थ वेदनम। ये बात का पीतज हृदय रोग का निदान ऐसे बोला गया जैसे कि पीतज आहार सेवन करने के बाद होता है। इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें लक्षण क्या आएगा ना, पीत के कारण दाह तो होगा, और मुंह में खट्टापन, तिक्तता आ जाता है, तिक्तता वक्त्रे, तिक्ता अम्ल उद्ग्रहण, और एसिडिटी का, एसिड का रिगर्जिटेशन होगा, क्लम होगा, तृष्णा, मूर्छा, भ्रम, स्वेद। ठीक है, तृष्णा, मूर्छा, भ्रम, स्वेद। भाई देखो, बहुत सारे चीजों को निमोनिक्स पॉसिबल नहीं है, कि बहुत सारे चीजों को याद रखना पॉसिबल नहीं, इसको कॉमन सेंस यूज करके करना है। पित्त अगर इन्वॉल्व हो तो स्वेद होगा, भ्रम होगा, मूर्छा होगा, तृष्णा होगा, क्लम होगा, दाह होगा, तिक्त अम्ल उद्ग्रहण होगा, तिक्त वक्त्र तिक्तता हो जाएगा, हृदय में दाह होगा। ठीक है, पित्तज हृदय का इस सारे लक्षण गया कि कफज हृदय में क्या होता है? अत्यादानम, गुरु एवं स्निग्ध पदार्थ का अधिक भोजन, अत्यादानम गुरु स्निग्धम, अचिंतनम, अचेष्टनम, बहुत गुरु स्निग्ध भोजन सेवन करना, बिल्कुल चिंता ना करना, और बिल्कुल काम कुछ नहीं करना, अचेष्टनम। ये होगा कफज हृदय का अपना निदान। और कफज हृदय का लक्षण क्या होगा? सुप्तंग स्थिमित भारिकम, सुप्तता आ जाएगा, और गीले कपड़ा जैसे ओढ़े हो आप, ऐसे टाइप का लगेगा। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होता है तंद्रा अरुचि परितस्य भवति अस्माभूतं होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। तंद्रा होता है, अरुचि होता है, तंद्रा अरुचि परितस्य भवति अस्माभूतं यथा। और भवति अस्माभूतं, ये मतलब ये होता है कि पत्थरों का भार, जैसे आपके ऊपर पूरा पत्थर लदा हुआ है, ऐसे टाइप का आपको फील होगा। और ये लक्षण कफज गुल्म में भी है, अस्माभूतं कफज गुल्म भी है, उसको आप अच्छी तरीके से याद रख लेना। ठीक है, त्रिदोष हृदय का निदान लक्षण क्या होगा ना, सारे बाता पिता कफदोषों का उत्पन्न हृदय रोग में जो निदान एवं लक्षण कहे गए वो सबका मिश्रित हो जाता है, तो त्रिदोष हृदय रोग होगा। इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला चीज होता है, ये कष्ट साध्य होता है, सान्निपातिक हृदय रोग कष्ट साध्य हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कृमिज हृदय रोग का निदान हम लोग डिस्कशन करेंगे कि त्रिदोष जतु हृदय रोग जो दुरात्मा निषेवते, त्रिदोष हृदय रोग में जो मूर्ख व्यक्ति तीड़ दुग्ध गुड़, तीन चीज वेरी इंपॉर्टेंट, तीड़ दुग्ध गुड़ आदि का सेवन करे तो इसमें क्या होगा? सेवन करता है, उसके मर्म के किसी एक भाग में ग्रंथि, यानी हृदय के किसी एक भाग में मर्म एकदय से एक ग्रंथि उत्पन्न हो जाएगा, और उसमें रस धातु आकर, और वही ग्रंथि में कौन आ जाएगा? रस धातु आ जाता है, और वही ग्रंथि में रस धातु आ जाता है, और उसमें वो रस धातु क्लेदता उत्पन्न कर देता है। तदंतर वही क्लेदता के कारण उसमें क्या होता है ना, कृमि उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वो क्लेदता के कारण उसमें कृमि उत्पन्न हो जाता है। ये हृदयगत कृमि आप देख लो, ये ऐसे कृमि हृदय में हो जाते हैं। ठीक है, ये हृदयगत कृमि हो जाता है। ठीक है, इसमें वर्म इन्फेस्टेशन हृदय में हो जाता है। इसके बाद कृमिज हृदय का लक्षण क्या होता है? एग्जाम में आने वाला चीज, तुद्यमानम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तुद्यमानम। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, कृमियों द्वारा काटने से हृदय में सुइयां चुभाने की, यानी पिन प्रिकिंग टाइप का सेंसेशन हो जाता है। हृदय सूची विरिव, तुद्यमानम पिन प्रिकिंग सेंसेशन, हृदय सूची विरिव, छिद्यमानम छेदन करने का होता है। शस्त्री जात कंडु महारुजम, वेरी इंपोर्टेंट, शस्त्री जात कंडु, कंडु होता है, महारुज होता है, शस्त्री जात, ये इंपोर्टेंट होता है। और इसमें क्या किया जाता है? असह्य पीड़ा होता है, और इन लक्षण से भयानक कृमि रोग समझकर चिकित्सा कुशल वैद्यों को चाहिए कि वो शीघ्र मृत्युकारक इस रोग को शांत करने का शीघ्र प्रयत्न करें। ठीक है, ये वेरी इंपोर्टेंट होता है। ये कृमि रोग, शिर रोग हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे? दोषों के मान विकल्प अनुसार उनका व्याधियां डिस्कशन करेंगे कि दोषों का मान विकल्प, एक अग्निवेश जी का क्वेश्चन था अत्र पुनर्वसु को, तो मान विकल्प के अनुसार दोषों के टोटल 62 है, जो कि एग्जाम में आता है। टोटल 200 मानव विकल्प अनुसार दोषों का कितने व्याधियां होते हैं? ठीक है, मानव विकल्प के अनुसार कितने व्याधियां होते हैं? टोटल 62 होते हैं। बुद्धि क्षय अनुसार होंगे 25, क्षय अनुसार होगा 25। जैसे 200 का वृद्धि क्षय, 200 का क्षय हिसाब करके अगर करेंगे, वृद्धि क्षय अनुसार होगा 25, वृद्धि क्षय अनुसार होगा, वृद्धि अनुसार होगा 25, क्षय अनुसार होगा 25, वृद्धि क्षय अनुसार होगा 12, तो टोटल हो गया 62। और तरतम अनुसार 200 का हो जाएगा भेद, हो जाएगा असंख्य। और समवृद्ध दोषों के एक भेद है, समवृद्ध दोषों का
एक ही भेद होता है। और जो मैं चीज बोला जैसे कि पृथक त्रयश्च तय वृद्धि व्याधि पंचविंशत, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ 25 पे, ठीक है। फिर एक दूसरे जो व्याधि है 3 भेद होगा, क्या क्या होगा ना, सन्निपात का टोटल होगा, मतलब एक दूसरे जो 3 भेद क्या होगा, वातवृद्ध, पित्तवृद्ध और कफवृद्ध। फिर सन्निपात क्या होगा टोटल 13, द्विदोष होगा 9, ठीक है, एक दूसरे होगा 3, 25 हो जाएगा। एक ही चीज का डिस्कशन किया जाता है और उसका श्लोक इधर है, ठीक है। जथा वृद्धि तथा क्षीणे दोषे स्यु पंचविंशति, ठीक है। तो वृद्धि के अनुसार होगा 25, क्षय के अनुसार होगा 25, वृद्धि क्षय के अनुसार होगा 12, सो टोटल होगा 62। ये होगा दोषों का मानव विकल्प, ठीक है। तो चरक के मत से दोषों के विकल्प के अनुसार व्याधियां 25, 25, 12, 62 भेद होते हैं। द्विषष्टिता भवन्ति एते भुजिष्टमिति निश्चय, ये सुश्रुत ने बोले द्विषष्टिता, और सुश्रुत भी सेम चीज बोले 62, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद टोटल जो क्षय होता है, ये क्षय का टोटल कितना भेद होगा, क्षय का टोटल 18 भेद होगा, वो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। तो सुश्रुत ने जो क्षय के भेद बोले हैं टोटल 2 बोले हैं, सारंगधर जी ने बोले हैं उसके हिसाब से 5 बोले हैं, हरित ने टोटल 10 बोले हैं, ठीक है। तो क्षय का जो अष्टभेद मतलब 18 भेद होगा, इसमें 200 क्षय होगा 3 ही, धातु क्षय होगा 7 है, मल क्षय होगा 7 है, पंचेंद्रिय मल मूत्र पुरुषा, ठीक है। ये टोटल हो गया 3 7 3 10, टोटल होगा 200 क्षय होगा 3, धातु क्षय होगा 7 3 10, मल क्षय होगा 7 10 7 17, एक होगा ऊर्जा का क्षय एक होगा, ये टोटल होगा 3 7 7 1, ठीक है, ये टोटल होगा। तो रसक्षय का लक्षण हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, रसक्षय क्यों हो रहा है, मैं वही चीज बोला था, 200 जब रसव सुतस में एंट्री किया है तो वहां से विकृति रसव सुतस का विकृति करेगा। 200 का वो क्या गति था, कोष्ठ से शाखा गति था, क्योंकि शाखा का अर्थ होता है रक्तादो धातवस्तु, यानी रक्त रस मांस मेद अस्थि मज्जादि धातु। तब वही 200 जब रस धातु में रसव सुतस में प्रवेश कर रहा था तो रसव सुतस में रसक्षय का लक्षण प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये होगा रसक्षय लक्षण। क्या होगा, घट्टते सहते शब्दं नौचे द्रवति शूल्यते हृदय ताम्यते स्वल्प चेष्टा से भी रसक्षय। देखो भाई, ये श्लोक का पूरा रट लेना है आपको, एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है। उसका कुछ फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है। घट्टते सहते शब्द नौचे द्रव्यति, ये क्वेश्चन होता है। रस धातु का क्षीण होने पर क्या होता है, थोड़े से परिश्रम करने वाले हृदय में दवाई या हिलाए का जैसा अनुभव होता है, ऊंचे या जोरदार शब्दों की सहन शक्ति नहीं सह पाती, हृदय में जल्दी घबराहट आ जाती है, कुछ मतलब चुहाने जैसी पीड़ा हो जाती है, आंखों के सामने अंधेरा प्रतीत हो जाता है। एक एक स्टेटमेंट आ जाता है और क्या लक्षण पूछा जाता है, क्या लक्षण पूछा जाता है, इसका रेफरेंस नहीं तो इसमें ए भी मैचिंग आ जाता है, ए भी मैचिंग आ जाता है। ए में रहेगा घट्टते सहते शब्दम आ जाएगा, और यहाँ पर रहेगा रक्त धातु, ठीक है, और रक्त का कुछ आ जाएगा, मांस रस रक्त मांस मेद, ऐसे 4 उनका लक्षण, तो ए भी मैचिंग आपको करना है, ठीक है। और धन्वंतरी जी के अनुसार रसख्य में क्या होता है, हृदय में वेदना, कंपन, सुष शून्यता और प्यासा तृष्णा, ये हो जाते हैं। धन्वंतरी जी बोले रक्तक्षय का क्या होगा, पारुषा स्फुटिता मृणा त्वग रुक्या रक्त संख्या, इसको या तो पारुषा स्फुटिता मृणा त्वग रुक्या रक्त संख्या, ठीक है। मांसख्य का लक्षण क्या होगा, स्पीक ग्रीवा उदर शुष्कता, स्पीक प्रदेश ग्रीवा प्रदेश और उदर प्रदेश में शुष्क हो जाता है, ठीक है। फिर सबसे इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आता है, मेदोक्षय का लक्षण क्या होगा, मेस्फू, मेस्फू मतलब संधि स्फुटन, ग्लानी ग्लानी और ग्लानी अक्षणों आयास एवच, ठीक है, ग्लानी अक्षणों आयास एवच लक्षण मेदसी तनुत्तम उदर से, ये भी इंपोर्टेंट होता है, उदर में पतलापन आ जाता है, उदर पतला हो जाता है, ठीक है। सुश्रुत तथा भागवत ने मेदक्षय पर वेरी इंपोर्टेंट श्लोक जो बार बार आ जाता है, मेदक्षय प्लीहा वृद्धि, मेदक्षय होने के कारण प्लीहा का वृद्धि हो जाता है, यानी स्प्लेनोमेगाली होता है, मेदक्षय के कारण स्प्लेनोमेगाली होता है, ये सारे बोले हैं भागवत और सुश्रुत ने बोले हैं। और सुश्रुत ने ये मेदक्षय के कंडीशन में बोले संधि शून्यता, ये भी एग्जाम में आता है। सुश्रुत ने बोले मेदक्षय में क्या, संधि शून्यता, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। और अस्थिक्षय में क्या होता है, असही, अस्थिक्षय में असही होता है संधि, अस्थिक्षय में क्या होता है, संधि शैथिल्य, ठीक है। इसमें क्या था, मेस्फू, मेदक्षय में स्फुटन, संधि स्फुटन, और इसमें क्या होता है, संधि शैथिल्य होता है। दो चीज जो एग्जाम में बार बार आता है, अस्थिक्षय में संधि शैथिल्य होता है, और केश लोम नख श्मश्रु द्विज पतनम श्रम, केश लोम नख मतलब केश लोम नख श्मश्रु, ये सारों का गिर जाता है और श्रम बहुत होता है। इसीलिए जब भी आप लोगों के पास कोई पेशेंट आता है कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, मेरा अनटाइमली मेरा नाखून कट जाता है, तो इसमें अस्थि भाव श्रुतदुष्टि का चिकित्सा दे दो। चिकित्सा का मैं बाद में पढ़ाऊंगा, तो चिकित्सा कैसे देना है,
ना अस्थि व सूतोष का चिकित्सा करना है। कैसे करेंगे? पहले मूल स्थान का चिकित्सा करेंगे। अस्थि व सूतोष का मूल स्थान जो है आपको पता है। फिर उसके बाद क्या चिकित्सा सूत्र फॉलो करेंगे। अस्थि व सूतोष का चिकित्सा सूत्र क्या है? ना अस्थि आश्रित व्याधिनाम पंचकर्माणि भेषजम वस्तु क्षीर सर्प भी तिक्त का उपहिता नीच। ये पंच यानी तिक्त रस साधित क्षीर या घृत का बस्ती देना चाहिए। फिर उसमें क्या करें? 200 प्रेडोमिनेंस। 200 प्रेडोमिनेंस मतलब दाह हो रहा है तो पित्त, शूल हो रहा है तो वात, कंडू हो रहा है तो कफ, ऐसे 2 को देखना है। फिर लास्ट में क्या ना व्याधि पत्नी की चिकित्सा उसमें करते हैं, मतलब डायरेक्ट मेडिसिन देते हैं। जैसे कि अस्थि को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, बाल गिर रहा है या हेयर फॉल हो रहा है या नख, ये सारी चीज अगर नष्ट हो रहे हैं तो उसमें अस्थि के लिए अस्थि पोषण चिकित्सा हम लोग देंगे। जैसे कि प्रवाल पिष्ट देंगे और कुकुटांड तो टैबलेट देंगे, सुधा सट का टैबलेट देंगे। तो ऐसे ट्रीटमेंट किया जाता है हर किसी चीज का। रसखेय में से ऐसा होता है, जैसे कोई पेशेंट आपके पास आया, बोला कि मेरा मिल्क फॉर्मेशन, डिलीवरी के बाद मिल्क फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? रस धातु का चिकित्सा करना है। कैसे करेंगे? रस धातु का मूल स्थान को, यही तो ट्रीटमेंट का फंडा यही है। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि आप चिकित्सा सूत्र क्यों रटते हो? यही रस धातु का चिकित्सा करना है। रस धातु चिकित्सा करना है तो 4 फंडा है। कैसा? पहले मूल स्थान का चिकित्सा रस धातु का, फिर सेकंड नंबर पॉइंट रस धातु का चिकित्सा सूत्र फॉलो करेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट उसमें 200 प्रेडोमिनेंस क्या होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट इसमें व्याधि प्रतिरोधक चिकित्सा डायरेक्ट देंगे, यानी डायरेक्ट मिल्क फॉर्मेशन कर ले, शतावरी आदि ड्रग्स हम लोग देंगे। कोई आर्तव प्रॉब्लम लेने के आ गया तो रसव सूत्र ठीक है चिकित्सा करेंगे। ऐसे मूल स्थान का चिकित्सा सूत्र, 200 प्रेडोमिनेंस और व्याधि प्रतिरोधक चिकित्सा करेंगे। ये मैं बीमार स्थान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। मज्जाक्षय में क्या होगा? प्रततंग वात रोगिणी। मज्जाक्षय होने से बंदा क्या होता है ना, वात रोग में आक्रांत हो जाता है। ये एग्जाम में आता है, ठीक है। शुक्रक्षय में क्या होता है? मुख शोष होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मुख शोष हो जाता है, पांडुता आ जाता है शरीर में, और श्रम हो जाता है और क्लैव्य हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट। मुख शोष एक है, मुख परिशोष एक है। मैं डिस्कस करूंगा परिशोष किसमें है। शुक्र क्षय के लक्षण होता है, तो जिसका जो क्षय लक्षण है उसमें वो श्रुतोष का ही हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। दोषों के गति के अनुसार ही हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, जो मैं आपको बोला हूं, ठीक है। पुरुष क्षय का लक्षण क्या होगा? चंत्राणी पीडनी, अंतर में बहुत दर्द होता है। और क्या होता है? उन्नमयन कुखी, कुखी का उन्नमयन हो जाता है। तिर्जक उद्धप्त गच्छति, कुखी का क्या होता है? इधर उधर मूवमेंट हो जाता है और हृदय को भी पीड़ित कर देता है। वो पुरुष क्षय के लक्षण हो जाएगा। फिर मूत्रक्षय का क्या लक्षण होगा? मूत्रक्षय होने से पिपासा होगा। शुक्र में था मुख शोष, इसमें है मुख परिशुष्यति। शुक्र में था मुख शोष, लेकिन मूत्र में है मुखं च परिशुष्यति। दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बागवट है रक्त सहित मूत्र का निकलना तथा सुश्रुत में बस्ती प्रदेश में पीड़ा होना, ये 2 के लक्षण अधिक बताएं। तो मूत्रक्षय में बागवट ने क्या बोला? सरक्त मूत्र, अन्य धातु मिश्रित मूत्र बोलते हैं उसको, सरक्त मूत्र होगा। और सुश्रुत ने बस्ती प्रदेश में पीड़ा, एक एक्स्ट्रा चीज बोले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मलायन के बारे में लक्षण डिस्कशन करेंगे कि शून्यानि लघुनि विशुष्कानि, यानी नाक, कान, आंख, मुख एवं रोमकूप का मल का अगर क्षय होगा तो क्या होगा? शून्य टाइप का लगेगा, लघु फील होगा, शुष्क टाइप का फील होगा। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद ओजोक्षय का लक्षण क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, ये श्लोका को पूरा रट लो। ओजोक्षय का लक्षण क्या होगा? विभेति दुर्बलो अभिक्षण, ध्यायति व्यथितेन्द्रिय, दुष्छाय दुर्मनोरोक्ष्य, क्षाम ओजस लक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट। विभेति, ओजस के क्षय हो जाने पर मनुष्य भयभीत हो जाता है, और दुर्बलो अभिक्षण, बहुत दुर्बल हो जाता है। ध्यायति, इंद्रियों का चिंतित रहता है, ध्यायति मतलब चिंतित रहता है। व्यथितेन्द्रिय, इंद्रिय व्यथित हो जाता है, इंद्रिय निस्तेज होता था। दुष्छायो यानी अकर्मण्य हो जाते हैं लोग, दुर्मन पीड़ित हो जाते हैं, निरुत्साह हो जाते हैं, शरीर में रुक्षता आ जाता है। ये ओजोक्षय का लक्षण होता है, ठीक है। और अब हम ओजो के बारे में एक बढ़िया चीज डिस्कशन करेंगे। ओजो को 2 प्रकार के डिस्कशन इधर चरक जी ने 17 चैप्टर में किए हैं। एक होता है गर्भस्थ ओजो, एक होता है हृदयस्थ ओजो। ओजो अगर पूछा जाए तो गर्भस्थ, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि हृदय तिष्ठन्ति जत शुद्धम रक्तम ईशत पित्तकम। ये क्या होता है ना, जो हृदयस्थ ओजो होता है ये क्या होता है? शुद्धम यानी श्वेत वर्ण का होता है। रक्तम ईशत पित्तकम, रक्त वर्ण और ईशत पित्तकम होता है। क्वेश्चन में आ जाएगा जत शुद्धम रक्तम ईशत पित्तकम, ये किसका लक्षण है? ओजो का। कौन सा ओजो का? ना ये हृदयस्थ ओजो का, ना गर्भस्थ ओजो का लक्षण है, नहीं हृदयस्थ ओजो का लक्षण होता है। इसीलिए ये हृदयस्थ ओजो जो होता है ये कहाँ पे उसका इंपोर्टेंस है ना, आपका जो बोला गया था मासानुमासिक गर्भवृद्धि में जो अष्टम अस्थिर भवंती ओजो, अष्टम मास में अस्थिर भवंती ओजो, ये ओजो अस्थिर हो जाता है, अस्थिर भवंती ओजो होता है। वही हृदय तिष्ठन्ति, वो जो ओजो था
मतलब अष्टम अस्थिर भवंती ऊर्ज, वो वाला जो ऊर्ज वो गर्भस्थ ऊर्ज है, लेकिन वो वाला जो ऊर्ज वो गर्भ पैदा हो जाने के बाद ये हृदयस्थ ऊर्ज होता है। ठीक है, तो हृदय तिष्ठन्ति जत शुद्धम रक्तम ईशत पीतकम, ये हृदय ऊर्ज होता है। और गर्भस्थ ऊर्ज क्या होगा? प्रथम जायती ऊर्ज शरीर सर्पी वर्ण मधुरसम लाजागंधम प्रजायती, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये होता है गर्भस्थ ऊर्ज, गर्भावस्था में ये ऊर्ज रहता है। और जब मासानुमति का गर्भवृद्धि में बोला गया है कि अष्टम मास अस्थिर भवंती ऊर्ज, और इसका इंपोर्टेंस क्या होता है? अष्टम मास में क्या होता है? ऊर्जा का मूवमेंट होता है, तो इसी मूवमेंट में अगर ऊर्जा कहीं रुक गया तो बच्चे का डेथ हो जाता है, तो इसलिए उसको बहुत इंपोर्टेंट बताया गया है। गर्भावस्था में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो गर्भावस्था में ही ऊर्जा की उत्पत्ति होता है, उसका स्वरूप होता है सर्पी वर्ण मधुर रसम लाजागंधी प्रजायते। ठीक है, और इसके बाद क्षय जो मैं डिस्क्रिप्शन किया उसका कारण क्या होगा? व्यायामो अनशनम चिंता रुक्ष अल्प प्रमितासनम, यानी क्या अधिक व्यायाम करना, अनशन करना, चिंता रुक्ष थोड़ा तथा प्रमित भोजन करना, तेज हवा एवं धूप का सेवन करना, भय सुख और रुक्षता कारक मद्य आदि का पीना, रात्रि जागरण करना, ये सारे क्षयों का कारण हो जाते हैं। ठीक है, और इसके पश्चात जो सबसे बेस्ट वाला चीज ये चैप्टर में है उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और कुछ टाइम थोड़ा इंतजार कर जाओ, मैं 10-15 मिनट में खत्म कर दूंगा अपना लेक्चर, डोंट वरी। कुछ मतलब इंट्रोडक्शन में टाइम गया, इसलिए उसको आप अच्छी तरीके से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन करेंगे मधुमेह का संप्राप्ति। अच्छा, मधुमेह का जस्टिफिकेशन क्या है जो चरक जी ने इधर वर्णन किया है? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ इट? कि मधुमेह एक बस्तीगत व्याधि होता है, और ये बस्ती जो होता है त्रिमर्म में आता है, शिरा हृदय बस्ती, इसलिए शिरा रोग गया और हृदय रोग गया, इसलिए बस्ती रोगों का उत्पन्न हुआ। और बस्ती रोगों में चरक ने इधर मधुमेह का वर्णन किए हैं, और इसमें ऐसा एक बढ़िया चीज मैं डिस्कशन करूंगा मधुमेह का निदान के कॉन्टेक्स्ट में, जो चरक का एक मतलब आपके सामने एक बढ़िया चीज खुलेगा अभी। ठीक है, तो मधुमेह जो होता है ना, ये जो मधुमेह होता है इसमें चरक जी बोले हैं ये मधुमेह साध्य है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर मधुमेह को साध्य कैसे बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ साध्य है, क्योंकि मधुमेह को चरक जी ने ये कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्क्राइब किए हैं, कृच्छ्र मधुमेह साध्य थे, बाद में श्लोका पढ़ेंगे, कृच्छ्र मधुमेह साध्य थे। और कृच्छ्र साध्य किसका वेराइटी है बोलो? साध्य मतलब डिजीज दो प्रकार का होता है, एक होता है साध्य, एक होता है असाध्य। साध्य का फिर दो वेराइटी होता है, एक होता है सुख साध्य, एक होता है कृच्छ्र साध्य। साध्य का दो वेराइटी होता है, और एक बार साध्य का दो वेराइटी होता है, एक होता है कृच्छ्र, एक होता है साध्य का दो वैरायटी होता है, एक होता है कृच्छ्र, एक होता है सुख। मतलब एक आराम से साध्य हो जाता है, एक थोड़ा डिफिकल्टी से साध्य होता है, लेकिन साध्य होता है। लेकिन मधुमेह में यहाँ कृच्छ्र साध्य क्यों बोले चरक जी? इसका फंडा मैं आपको बोल रहा हूं। देखो, मधुमेह का दो संप्राप्ति बोला गया है। एक संप्राप्ति बोला गया है अवरोधजन्य, एक संप्राप्ति बोला गया है अवरोधजन्य, जो कि यह चैप्टर में है, चरक सूत्रस्थान 17 चैप्टर में मधुमेह का अवरोधजन्य संप्राप्ति बोला गया है। और एक मतलब मधुमेह का और एक संप्राप्ति बोला गया वात प्रकोपजन्य या धातु क्षयजन्य मधुमेह का बोला गया है। तो इधर इधर क्वेश्चन आता है, जिस चरक जी ने हर जगह जैसे बोला गया कफ मतलब कफज, जैसे कफज प्रमेय साध्य होता है, पित्तज प्रमेय जाप्य होता है, और बातज प्रमेय जो होता है वो असाध्य होता है, और बातिक प्रमेय के अंडर में मधुमेह होता है। लेकिन चरक क्या गलती की, इधर साध्य क्यों बोले अपना मधुमेह को? भाई देखो, एक ही बात होता है, हमारे पास जो 99% हमारे पास आते हैं, वो 99% जो मधुमेह पेशेंट हमारे पास आते हैं वो सारे अवरोधजन्य मधुमेह पेशेंट हमारे पास आते हैं। वो मैं बाद में बोलूंगा अवरोध क्या होता है। हमारे पास जो 99% पेशेंट आते हैं ये अवरोधजन्य पेशेंट आते हैं, और ये अवरोधजन्य आहार सेवन करने के बाद उनका अवरोध होता है और मधुमेह होता है, और ये अवरोध को हटा देने से डिजीज ठीक हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। इसीलिए चरक जी ने बोले ये मधुमेह कृच्छ्र साध्य है या साध्य है, जो आजकल का मेन प्रोटोकॉल बोला जा रहा है कि डायबिटीज रिवर्सल किया जाता है। लेकिन असाध्य किस कंटेक्स्ट में चरक जी ने बोले? असाध्य बोले वात प्रकोपक धातु क्षयजन्य को असाध्य बोले। क्यों? जो कि 1% पेशेंट हमारे पास आते हैं। इसका मतलब इसका मीनिंग क्या है ना? अवरोधजन्य जो मधुमेह होता है ये होता है। आज जो मैं अभी जो डिस्कशन करूंगा, जो कि ये 17 चैप्टर में है, ये अवरोधजन्य मधुमेह है। लेकिन चरक के निदान में जो बोला गया वात प्रकोप धातु क्षयजन्य मधुमेह बोला गया है, क्योंकि उसमें वातिक निदान के अंडर में बोला गया कि वात प्रकोपजन्य आहार अगर आप सेवन कर रहे हो, वात प्रकोपजन्य आहार अगर आप सेवन कर रहे हो, तो वायु का प्रकोप हो जाने के बाद जो मधुमेह होता है वो उसमें क्या होगा ना, धातु क्षय होगा आपका, और आपका जो मधुमेह होगा वो असाध्य हो जाएगा, जो कि परसेंटेज बहुत कम है। इसलिए तो
हम हर मधुमेह को ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसका रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि 99% मधुमेह जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, अवरोध जन्य वालों को हम ट्रीटमेंट करते हैं। जिनमें अवरोध हुआ है, अवरोध हटा देने से मधुमेह ग्लूकोज कंट्रोल हो जाता है। लेकिन बातिक वाला जो बात, तो बातिक कारक आहार सेवन करने के बाद, जो वायु प्रकोप हो जाने के बाद, धातु क्षय हो जाने के बाद जो मधुमेह वाले आते हैं 1% होते हैं। अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, देखो वात प्रकोपजन्य आहार सेवन करने वाले लोग कितने होते हैं? तो वात प्रकोपक आहार क्या होता है? जैसे मैं बोलूं कटु तिक्त कषाय रस, कटु, मैं अगर मिर्चा के बारे में डिस्कशन करूं, 1 केजी मिर्चा कोई खा पाएगा क्या ज्यादा? लेकिन 10 रसगुल्ला खा सकता है, जो कि अवरोधजन्य का है, समझे आप? जिसमें निदान में ऑलरेडी चरक जी लिख लिए, इधर लिख दिए, गुरु, स्निग्ध, अम्ल, लवणानि अतिमात्र, समसनम, नवन अन्नम पानम, नवान्न पानम, ठीक है, ये सारे लिख दिए हैं, समझे आप? आस्य सुखम, स्वप्न सुखम, ये सारे लिख दिए हैं चरक जी ऑलरेडी। लेकिन कोई 1 केजी का मिर्चा नहीं खा पाएगा। तिक्त, बिटर, मैं बोलूंगा 1 केजी का करेला खा जाओ, खा पाओगे क्या? मैं बोलूंगा कषाय, 1 केजी का कषाय रस खाओ, खा पाओगे? ये तो कंडीशन है कि इतने अमाउंट में हम लोग नहीं खा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि कटु तिक्त कषाय रस जो होता है, ये वायु को प्रकोप करता है, और वायु का स्थान कहाँ होता है? बस्ती पुरुषाधान कटिशक्तिनी पादावस्थिनी च वात स्थानानि। इसका मतलब ये होता है कटु तिक्त रस को, इसका मतलब ये होता है कि कटु तिक्त कषाय रस सेवन आप इधर किए, इधर कटु तिक्त कषाय रस सेवन किए, और वायु का प्रकोप इधर होता है, और ये कटु तिक्त कषाय रस यहाँ आके आके पूरे डाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करके जब ये पोकाशय में पहुंचते हैं तो उनका सारे बैटरी खत्म हो जाते हैं, सारे बैटरी खत्म हो जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो यही रीजन हो जाता है, यही रीजन आपका हो जाता है कि वात प्रकोपजन्य जो ये होते हैं, मधुमेह होते हैं, तो कटु तिक्त कषाय रस का मतलब सेवन करने के बाद उनका जो ये जो मधुमेह का हो जाता है, वो क्या होता है? धातु क्षय उसमें होता है, और मधुमेह मतलब इसी में जो मधुमेह उत्पन्न होता है, जो कि चरक निदान स्थान में बोला गया है, उसी से जो कोई एक्सेप्शनल लोग उसको खाते हैं, तो उसी के वजह से जो मधुमेह होता है तो वात प्रकोप होता है और उसमें धातु क्षय हो जाता है। और इसमें लोग नहीं खा पाते, लेकिन कोई कोई है जो खाते हैं। इसका मैं एग्जांपल दूंगा। एक पेशेंट मेरे पास आया है, ये पेशेंट एक मेरे पास आया है, 11 साल का लड़का, 13 ईयर का लड़का आया था। फास्टिंग था उसका 390 और खाने के बाद था 400 समथिंग था। इसको मैंने किया, ट्रीटमेंट किया, काढ़ा बस्ती दिया, देने के बाद पूरा शुगर कंट्रोल हो गया। लेकिन उसका हिस्ट्री जो मैं लिया, तो उसका हिस्ट्री पूरा क्या था पता है आपको? उसका हिस्ट्री था वो बहुत मछली खाता है, बहुत स्पाइसी खाता है, बहुत कटु तिक्त कषाय खाता है, मतलब सब कुछ खा जाता है। और उसमें क्या हुआ ना, उसका एक हिस्ट्री दिया कि वो लैट्रिन करने के बाद 2 बूंद तेल गिरता है, आनस से 2 बूंद तेल गिरता है, 2 ड्रॉप्स ऑफ फ्री फैटी एसिड मतलब ऑयल आ जाता है, फैट आ जाता है। और वही जो ऑयल था वो क्या ऑयल था ना, वही वायु के मतलब अत्यंत वात प्रकोपजन्य आहार सेवन करने के बाद उसका धातु क्षय शुरू हो जाता, मतलब मेद धातु का क्षय शुरू हो गया। जब मेद धातु का क्षय वो बच्चा का शुरू हो गया, तो धीरे धीरे करके उसको क्या हो गया ना, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट हो गया और उसका शुगर बहुत बढ़ गया, और वही धातु क्षयजन्य। जब वो पेशेंट को देखा, फिर डिफरेंट डायबिटिक इंस्टीट्यूट को पूछा, भेजा गया, तो बाद में पता चला कि ये टाइप 1 डायबिटीज है, ये टाइप 1 डायबिटीज है। तो डायबिटीज का तो 2 वैरायटी होता है, एक टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। वात प्रकोपजन्य धातु क्षयजन्य जो वर्णन चरक निदान में किया गया है वो टाइप 1 है, और मार्गावरोधजन्य जो मधुमेह होता है वो होता है अपना टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। और ये मार्गावरोधजन्य का वर्णन ये चरक सूत्रस्थान 17 चैप्टर में किया गया है। और मार्गावरोधजन्य क्या है, मैं बाद में उसको बढ़िया तरीके से डिस्कशन करता हूं, जिसमें मार्गावरोध एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि इसका एक्चुअली संप्राप्ति क्या होता है, मैं आपको अच्छी तरीके से बोल देता हूं। इसका एक्चुअली संप्राप्ति क्या होता है ना, देखो अपने बॉडी में हम लोग जो आहार सेवन करते हैं, मान लीजिए हम लोग जो आहार सेवन किए, ये आहार सेवन करने के बाद ये टोटल हम लोग जो आहार सेवन किए, आहार सेवन करने के बाद ये यहाँ से ग्लूकोज फॉर्मेशन हो गया। ये ग्लूकोज फॉर्मेशन होने के बाद ये ग्लूकोज क्या करेगा, बॉडी में यूटिलाइज होगा। तो ग्लूकोज को बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसमें एक ऑर्गन हमारा है, इसमें एक बढ़िया ऑर्गन है डिओडेनम के पास ही, ये जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन में एक चीज मतलब सिक्रेशन होता है, ठीक है, ये ऑर्गन से एक चीज सिक्रेशन होता है, ये ऑर्गन ही ग्लूकोज को लेकर मेटाबॉलिज्म करेगा। तो यहाँ पे क्या सीक्रेट होता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है। तब ग्लूकोज और इंसुलिन, ठीक है, जब ग्लूकोज और इंसुलिन, ग्लूकोज
प्लस ग्लूकोज प्लस इंसुलिन, दोनों में अगर कपलिंग होगा तो इंसुलिन ग्लूकोज को लेके करेगा क्या, पूरे सारे ऑर्गन में जाके फेंक देगा। जब ऑर्गन में जाके फेंक देगा तो ग्लूकोज और इंसुलिन का जो मतलब कॉम्बिनेशन रहता है, जो कपलिंग रहता है वो टूट जाता है, इंसुलिन आ जाता है और ग्लूकोज बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन जब हमारे ग्लूकोज और इंसुलिन के बीच में फ्री फैटी एसिड बढ़ जाता है, फ्री फैटी एसिड बैठ जाता है, तो ये फ्री फैटी एसिड इंसुलिन और ग्लूकोज को मिलने के लिए नहीं देता है। जब नहीं देता है तो क्या होता है, बॉडी में और ग्लूकोज बढ़ जाता है। जब बॉडी में बहुत ग्लूकोज बढ़ जाता है, फिर इंसुलिन क्या करता है, बॉडी पैनक्रियाज को और स्टिमुलेट करता है, भाई और मेरे को सॉरी, जब ये ग्लूकोज में, जब ये बॉडी में ज्यादा, जब ये शरीर में ज्यादा ग्लूकोज बढ़ जाता है तो ग्लूकोज एक रिबाउंड इफेक्ट देता है अपना पैनक्रियाज को, ग्लूकोज एक रिबाउंड इफेक्ट देता है पैनक्रियाज को, भाई तुम और ग्लूकोज, तुम और इंसुलिन सीक्रेट करो, और इंसुलिन सीक्रेट करो। लेकिन ऑलरेडी इंसुलिन है, फ्री फैटी एसिड के वजह से वो यूज नहीं हो पा रहा है, तो और इंसुलिन सीक्रेट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे इंसुलिन भी है, ग्लूकोज भी है, लेकिन यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है फ्री फैटी एसिड की वजह से। तो एक कंडीशन आएगा जिसमें क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया डेवलप करेगा। एक कंडीशन आएगा जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा ना हाइपर एक कंडीशन होगा जिसमें हाइपरग्लाइसेमिया होगा, और इंसुलिन भी ज्यादा है इसमें, और इसमें हाइपर इंसुलिनेमिया होगा, हाइपर इंसुलिनेमिया होगा, और इसमें फैट ट्राइग्लिसराइड में बढ़ेगा, जैसे में बढ़ेगा तो हाइपर ट्राइग्लिसराइड में बोलेगा, हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया भी होगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। और इसी कंडीशन में जो ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एसटीएन भी होगा। ये टोटल को बोला जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये टोटल को बोला जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम शुरू किससे होता है ना, फ्री फैटी एसिड बीच में रहता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्गावरोध ही होता है। और इधर जो मैंने बोला ना अवरोधजन्य, जो ये चैप्टर में ये अवरोध क्या होता है, ये फ्री फैटी एसिड ही अवरोध करता है। और इसका संप्राप्ति चरक जी ने कैसे बोले हैं, देखो चरक जी ने इसको अच्छी तरीके से बोले हैं कि गुरु स्निग्ध अम्ल लवणानि अतिमात्रं समझ, गुरु स्निग्ध लवण मात्र बहुत सेवन करने से, नवम अन्नम च पानं च निद्रम अस्य सुखानि च, नवान्न पानं न्यूली हार्वेस्टेड फूड अगर हम खाएंगे और पाना अगर सेवन करेंगे, निद्रा अस्य सुखानि बहुत सोएंगे, आराम से बैठेंगे, त्यक्त व्यायाम अचिंतन, व्यायाम नहीं करेंगे, चिंता जन्य कार्य कुछ नहीं करेंगे, संशोधनम अकुर्वतम, और हम संशोधन भी नहीं करेंगे, तो क्या होगा न, कफ कारक गुरु स्निग्ध आहार सेवन करने से श्लेष्मा का प्रकोप हो जाएगा, पित्त अम्ल आदि सेवन करने से पित्त का प्रकोप हो जाएगा, और क्या होगा ना, मेदं च मांसं च, मेद प्रकोप होगा और मांस प्रकोप होगा। जो मैं ऑलरेडी बोला था, इसमें क्या होगा, फ्री फैटी एसिड जो बढ़ गया था, और इसमें बेसिकली मसल टिश्यू और एडिपोस टिश्यू में क्या होगा ना, वृद्धि हो जाएगा, यानी मेद मांस वृद्धि होगा। ये एग्जाम में आता है कि श्लेष्मा पित्त मेद मांस, ये चार चीज बढ़ेगा। अच्छा, मेद और मांस क्यों बढ़ता है, क्योंकि अग्निमांद्य होता है इसमें, इसमें अग्निमांद्य हो जाता है। अग्निमांद्य मेरा बेसिक कंसेप्ट था, अग्निमांद्य जहां होगा वहीं धातु वृद्धि होगा, एग्जाम में आता है अग्निमंद में धातु वृद्धि, ठीक है। अग्निमंद में, अग्निमंद में धातु वृद्धि किसने बोले हैं, अष्टांग हृदय ने बोले हैं, ठीक है। तो अग्निमंद इसमें हो जाता है तो मेद और मांस का वृद्धि हो जाता है, श्लेष्मा और पित्त का भी वृद्धि हो जाता है। फिर क्या होगा, तई आवृत गति वायु ओजः आदाय गच्छन्ति, और ये क्या करेंगे ना, जब श्लेष्मा पित्त मेद मांस बढ़ जाएगा, यानी फ्री फैटी एसिड जब बढ़ जाएगा, श्लेष्मा पित्त मेद मांस फ्री फैटी एसिड जब बढ़ जाएगा, तब क्या होता, वायु मार्ग तय आवृत गति वायु ओजः, ये क्या करेंगे ना, वायु के मार्ग को वो अवरुद्ध कर देंगे, वायु को अवरुद्ध कर देंगे। जब ये वायु को अवरुद्ध कर देंगे तो वायु जदावस्थित तथा कृष्ण, तो वायु क्या करेगा, ओजो को लेके अपना ये प्रदेश में, बस्ती प्रदेश में पहुंचेगा और वहां जाके मधुमेह उत्पन्न करता है। सेम चीज इधर होता है, ग्लूकोज और इंसुलिन का मार्ग को फ्री फैटी एसिड पूरा अवरुद्ध कर देता है। सेम चीज चरक जी बोले, श्लेष्मा पित्त मेद मांस, ये जो फ्री फैटी एसिड जो था ये श्लेष्मा पित्त मेद मांस ही था, और वो क्या किया, वायु के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, तो वायु ओजो धातु को लेके सीधा आ गया कहां तक, बस्ती तक। सेम चीज इधर भी हो रहा है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है।
जब हल्के से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करता है तो हमको पता नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड प्री डायबिटीज। और प्री डायबिटीज कंडीशन में लोगों को पता नहीं चलता, वो असिम्प्टोमेटिक होता है। लेकिन आयुर्वेदा में पूर्व रूप मधुमेह कुछ लक्षण बोले हैं, लेकिन जब परपद सुप्तता, करपद दाह, आलस्य, जटिल भावना, कैसा नाम, ये लक्षण आ जाता है तो हम लोग बोल देते हैं मधुमेह। तो मधुमेह साध्य क्यों होता है? क्योंकि हम लोग संशोधन देके, संशोधन भवन विरेचन आदि देके ये फ्री फैटी एसिड को यहां से निकाल देते हैं। जब फ्री फैटी एसिड को हम यहां से निकाल देंगे तो क्या होगा? भाई, आराम से ग्लूकोज और इंसुलिन का कपलिंग हो जाएगा। तो इंसुलिन ग्लूकोज लेकर फेंक देगा। और खाली संशोधन नहीं, कुछ संशोधन होता है और डाइट रेस्ट्रिक्शन होता है और एक्सरसाइज होता है, उसी की वजह से किया जाता है, जो चरक ने ऑलरेडी बढ़िया तरीके से बोले हैं। ठीक है, स मारुतस्य पीतस्य कपस्य मोर्मु दर्शित आकृति गत्वा क्षयम आप्यायतु पुनः। इसका मतलब इन कारणों से वायु मार्ग अवरोध हो जाते हैं, वायु मार्ग अवरोध हो जाते हैं। ठीक है, कौन अवरोध करते हैं? कफ, पित्त, मांस, मेद। उधर फ्री फैटी एसिड किसका अवरोध करता था? ग्लूकोज और इंसुलिन को। ठीक है, फिर फलतः वो वायु ओजो धातु को लेकर बस्ती प्रदेश में पहुंचता है, तब कोष्ठ सद्य क्या करते हैं ना, अपना मधुमेह उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो ये जो मधुमेह उत्पन्न होता है, ये तीनों दोषों से कभी किसी के लक्षण शांत हो जाता है और कभी किसी किंतु पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो त्रिदोष इन्वॉल्व होता है, ये क्या होता है? ये अपना सामान्य जो व्याधि होते हैं, तो सामान्य व्याधि मतलब त्रिदोष का ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वात पित्त कफ होगा। तो कभी वात का, कभी पित्त का, कभी कफ होगा, इनमें मतलब लक्षण आ जाता है। ये हो गया अपना मधुमेह का पूरा संप्राप्ति। और ये मधुमेह को अगर हम लोग उपेक्षा करेंगे तो क्या होगा? हम लोगों का पीड़का उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या क्या पीड़का होगा? पीड़का उत्पन्न हो जाता है, और ये पीड़का टोटल होगा 7 वेराइटी का, ये एग्जाम में आता है। तो कहां कहां होगा? मामसो यानी मांस, मर्म, संधि। मामसो में पीड़का होता, मांस, मर्म, संधि। मैं एक एक करके पिक्चरल में आपको दिखाऊंगा। और ये पीड़का जो है, ये क्या क्या होगा? सरविका, कच्छपिका, जालिनी, सरसपी, अलर्जी, विनता, विद्रति। ये एग्जाम में बहुत बार आता है भाई, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। तो सरब जो चरक ने कितने प्रकार का बोले? सकोजा सह बीबी। चरक ने क्या लिखे? सकोजा सह बीबी, यानी सरविका, कच्छपिका, जालिनी, सरसपी, अलर्जी, विनता, विद्रति। चरक ने 7 बोले हैं, सुश्रुत ने 10 बोले हैं, एक्स्ट्रा 3 बोले हैं। क्या? मपुबी, मसूरिका, पुत्रिणी, विदारिका। बागवट ने 10 बोले हैं, सेम टू सेम। भोजन ने 9 बोले हैं, जो एक्स्ट्रा माने हैं एक कुर्मिका। एक्स्ट्रा माने हैं क्या? एक कुर्मिका और कुलोथिका। इसीलिए मैंने फॉर्मूला बोला है भक्कू। भक्कू मतलब भोज, कुर्मिका और कुलोथिका। और काश्यप ने 8 बोले, जो कि औरुंशिका स्टेप बोले, ये एग्जाम में आता है। कुलोथिका आता है एग्जाम में, कुर्मिका आता है, औरुंशिका आ जाता है। चरक का तो ऐसे लक्षण आएगा। और भेड़ा ने बातालिका पीड़ा का वर्णन किया, उसको अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, इसके बाद सरविका का लक्षण क्या होगा? अंत उन्नता, मध्य निम्ना, श्यावा, क्लेद, रुग्निता। ये अंत में उन्नत होता है, मध्य में निम्न होता है, ये सरविका होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एग्जाम में पढ़े बहुत बार आता है। श्याव वर्ण होता है, क्लेद और रुक बहुत होता है। तो सरविका को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये होगा सरविका। देखो भाई, अंत उन्नता, मध्य निम्ना, ये चारों की ओर उन्नत होता है और मध्य निम्न होता है, ये होगा सरविका। ठीक है, ये होगा सरविका। इसके बाद कच्छपिका क्या होगा? महावास्तु परिग्रह लक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कच्छप का फॉर्मूला क्या होता है? कम। कच्छप का फॉर्मूला क्या होता है? कम, यानी सॉरी कोमा। कच्छप का फॉर्मूला क्या होगा? कोमा। सॉरी, मैं गलत बोल दिया, कोमा। यानी कच्छपिका महावास्तु, कोमा महावास्तु परिग्रह और लक्षण होता है। और कच्छपिका कैसा दिखता है ना? कच्छपिका ऐसा दिखता है, देखो महावास्तु परिग्रह, ये कच्छपिका ऐसा दिखता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आप कक्षा में होता है, ये कच्छपिका। कच्छपिका कक्षा में होता है। ठीक है, ये हो गया अपना कच्छपिका। ये सारा पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं, हम देखें उसको। ठीक है, जालिनी क्या होगा? स्निग्धा श्रवा महाशय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्निग्धा श्रवा महाशया, रुजा, निस्तोद, बहुड़ा, सूक्ष्म छिद्र। ये एग्जाम में आता है, सूक्ष्म छिद्र, छोटे छोटे छिद्र उसमें रहते हैं। तो ये होगा अपना जालिनी। तो जालिनी को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये होगा जालिनी। देखो सूक्ष्म छिद्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं और वहीं से निकलता है। अब देखो, ये छिद्र से पस निकल रहा है, वो छिद्र से पस निकल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया जालिनी। इसके बाद सरसपी क्या होगा? पीड़का नाति महती क्षिप्रोपा का महारुजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाति महती क्षिप्रोपा का महारुजा, वो होगा सरसपी का। वो पूरा सरसप की तरह ही दिखता है। देखो सरसप की तरह ही दिखता है, ये सरसपी का। आपने सरसप 2 वैरायटी होता है, श्वेत सरसप, एक रक्त सरसप होता है। श्वेत सरसप की तरह ये दिख रहा है, देखो ये भाई होगा सरसपी का। ठीक है,
इससे बढ़िया और एग्जाम्पल कुछ भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल याद रहना चाहिए। ऑलर्जी क्या होता है? दहती तृष्णा मोह ज्वर प्रदा विसर्पति निशंग दुखात बहती अग्नि बालाजी। ठीक है, तो इसमें दहती तृष्णा मोह ज्वर प्रदा इंपोर्टेंट है, विसर्पति निशंग दुखात। ठीक है, दहती अग्नि, ये अग्नि मतलब दहन कारक होता है, ये एलर्जी होता है। तो एलर्जी कैसा होता है भाई ना, ये होता है एलर्जी। ठीक है, ये होता है एलर्जी, इसको आप अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, एलर्जी इस टाइप का दिखता है। फिर इसके बाद भिन्नता, भिन्नता बहुत बार एग्जाम में आता है। भिन्नता क्या होता है ना, न भिन्नता, भिन्नता में न है, न का मतलब नील पीड़का जिसमें दिखता है वो भिन्नता है। और ये महती, महती भिन्नता नील पीड़का, वो भिन्नता महती भी होता है। और ये कहां पे होगा? पृष्ठे बापी उदरे, पृष्ठ में होगा व उदर में होगा। वेरी वेरी, भिन्नता पृष्ठ में होगा व उदर में होगा, और महती होगा। और भिन्नता में न है, न मतलब नील पीड़का जिसमें होता है, दैट इज कॉल्ड एज भिन्नता। और भिन्नता भिन्नता भिन्नता, हाँ ये भिन्नता। ठीक है, ये भिन्नता होता है, इसको आप थोड़ा अच्छी तरीके से देख लेना। नील पीड़का थोड़ा ब्लूइश डिस्कलर टाइप का लगता है। ठीक है, इसका विद्रदी आपको पता होता है, ये तो अपना विद्रदी अल्सर होता है अपना। ठीक है, अब्सेस होता है, अब्सेस होता है सॉरी। तो विद्रदी जो होता है ये क्या होगा? त्वक मांस, त्वक स्नायु मांस होता है, त्वक स्नायु और मांसों में ये होता है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका फॉर्मूला मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है त्वक मांस त्वक स्नायु कंडरा महारुजा, कंडरा में होता है और ये महारुजा होता है। ठीक है, और विद्रदी जो होता है, और ये विद्रदी जो होता है, ये विद्रदी जो होता है इसमें पाक हो जाता है। तो पाक का मतलब वो पक जाता है। तो विद्रदी कैसे होगा वो तो आपको सबको पता है, ये विद्रदी है। ठीक है, इसमें पक हो जाता है, जिसको एब्सेस बोलते हैं, कार्बकल टाइप का ये हो जाता है, ये अपना हो गया विद्रदी। ठीक है, तो इसके बाद भगवान धन्वंतरि ने इसका वर्णन इस प्रकार प्रस्तुत किया, त्वक रक्त मांस मेद। क्या बोले? त्वक रक्त मांस मेद, TRMM, त्वक रक्त मांस मेद, भगवान धन्वंतरि बोले। और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आता है, किस व्रण में, मतलब किस डिजीज में व्रण, मतलब डिजीज में व्रण बहुत लेट में या बहुत डिफिकल्टी से ठीक होता है? कुष्ठिना विषजुष्टाना, जिसको कुष्ठ हुआ है, जिसको विष मतलब विष पॉइजन हो गया है, पीड़का मधुमेह, ना मधुमेह जो पीड़का होता है, व्रणा कुष्ठिना सिद्ध्यंती। ठीक है, और इसमें व्रण जो होता है, जो अब्सेस होता है, उसमें लेट में हीलिंग होता है। और व्रणे व्रणा, ठीक है, व्रणे व्रणा मतलब एक व्रण का पास दूसरे व्रण अगर हो रहा है वो भी डिफिकल्टी से ठीक होता है। ठीक है, तो ये होगा अंतर्विद्रति का निदान एवं संप्राप्ति होगा। एक ही मतलब निदान उसका है, उसको थोड़ा याद रख लो। शीतक अन्न, ठंडे अथवा वासी विधाई ऐसे टाइप का अन्न को सेवन करने के बाद ये होता है। और कुपित दोष जब शरीर के भीतरी अवयव में जाकर रक्त एवं मांस में प्रवेश करते हैं, तब अंदर छिपी हुई अतिकष्ट ग्रंथि उत्पन्न हो जाता है, और उसी को बोला जाता है अंतर्विद्रति। अंतर्विद्रति में इन्वॉल्व रहता है रक्त और मांस, RM, रक्त और मांस इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो विद्रति की परिभाषा क्या होगा, इसको याद रख लो, कभी रेफरेंस में काम में आ जाता है विद्रति का, थोड़ा याद रख लो। और कुछ मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा। काइंडली बी हैव पेशेंस टू लिसन टू मी। ओके, जैसे क्या होगा ना, दूषित रक्त की अधिकता से इस विद्रति हो जाती है, जिसमें जलन होती है, शीघ्र विदा होने के कारण इसको विद्रति बोला जाता है। दुष्ट रक्त अतिमात्रवात सवै शीघ्र विदहति, ततः शीघ्र विदाहित्वात् विद्रति इति विद्यते। तो एग्जाम में आता है विद्रति का जो डेफिनेशन एग्जाम में आता है, उसको थोड़ा याद रख लेना। इसमें क्या हो, दूषित रक्त के अधिकता के कारण ही होता है। तो वात तथा पित्त विद्रति के लक्षण, इसमें कुछ इंपोर्टेंट इससे ज्यादा नहीं है। कफज अंतर विद्रति के लक्षण हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें जृंभा, उत्क्लेश, अरुचि, स्तंभ, शीतक, श्लेष्म की विदु, सर्वासुच महत्सुणम विद्रति सुपजायते। तो इसमें क्या होता है, जृंभा होता है, और इसमें अरुचि होता है, उत्क्लेश होता है, जिसमें वो कफज अंतर्विद्युति का लक्षण होता है। पश्चिम विद्युति का लक्षण क्या होता है, एग्जाम में आता है। शस्त्री, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, शस्त्र, ये क्या होता है ना, शस्त्र शस्त्रे विद्यत ही व चोलुमके इव दह्यते, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर दो। और बुश्चिके इव दस्यते, ये इंपॉर्टेंट, यानी जिस विद्रति में शस्त्र अस्त्र से काटने की पीड़ा होती है, और बिच्छू के साथ, जैसे बिच्छू स्कॉर्पियन बाइट हो ऐसे टाइप का दर्द होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज पश्चिमान विद्रति। फिर श्राव के आधार पर दोस्तों निर्णय कैसे करेंगे हम, तनु रुक्ष अरुण श्राव फेनिड़ा, अगर ऐसे टाइप का श्राव हो रहा है तो वात विद्रति होगा। तिल मास कुलथी टाइप का श्राव होगा तो ये पित्त विद्रति होगा। भाई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। श्लेष्म उद्वति में क्या होगा, श्वेत, पिछड़ा, बहड़, बहु, ये सारे टाइप का श्राव होता है।
अंतर्विद्रति का 9 स्थान होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। अंतर्विद्रति का स्थान कितना है? चरक ने बोले 9, लेकिन सुश्रुत बोले 10, एक गुदो एक एक्स्ट्रा माने। तो अंतर्विद्रति का एक मतलब ये अंतर्विद्रति क्वेश्चन आता है कि अंतर्विद्रति का निदान का क्वेश्चन आता है कि जैसे कि घट्ट घटनम तमक प्रमुख काश श्वास क्लोमोजंग क्लोमो में अगर विद्रति होगा तो ऐसा टाइप का लक्षण आ जाता है। पिपासा मुखसुस संग्रह जक्रुजाय मुखसुस संग्रह जक्रुजाय श्वास, जकृत में अगर होगा तो श्वास रोग होगा, ठीक है। प्लीहा जाए उच्छ्वास उपरोध, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। जकृत में होने से श्वास होगा, प्लीहा में होगा तो उच्छ्वास उपरोध होगा, कुक्षी में होगा तो कुक्षी पार्श्वंतरण शूल होता है, वृक्क में अगर होगा, ठीक है, वृक्क में अगर पुष्टकटि ग्रह होगा, ठीक है। नाभि जाए अगर नाभि में होगा तो हिकाई बहुत, नाभि में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नाभि को याद रख लो, नाही, नाभि का फॉर्मूला याद रख लो, नाही, उड़िया में नाभि को नाही बोलते हैं, तो नाही हिक्का होता है। बंखण में होगा तो शक्तिसाध होगा, बस्ती में होगा तो कुछ पुति मूत्र बच्चेती, ये होगा। तो अंतर्विद्रति का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, बार बार आता है, जकृत का श्वास और अपना नाभि का हिक्का, ये 1000 बार एग्जाम में आता है, ठीक है, इसको याद रखना। सुश्रुत में वर्णित अंतर्विद्रति का परिचय, गुदे बात निरदस्तु बतो कुच्छा अल्पमूत्रता, नाभ्यांग हिका तथा अटुप, नाभि में हिका तथा अटुप होता है, बार बार एग्जाम आता है। कुखो मारुतकोपनम, कुफी में वायु प्रकोप होता है, कटिपुष्ट ग्रह तीव्र बंखण तो विद्रह, ठीक है, बंखण विद्रह मतलब वृक्को पार्श्व संकुच, ये इंपॉर्टेंट है। वृक्क में जो अगर विद्रति होगा तो पार्श्व संकुच होगा। प्लीहा नहीं उच्छ्वास अवरोध, प्लीहा में होगा तो उच्छ्वास अवरोध होगा, ठीक है। अथ मज्जा परिपाक घोर समुजाय थे, ये इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दो। अस्थ मज्जा, ये इसका मतलब यह होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको सुश्रुत ने बोले कि अस्थि मज्जा मतलब उपयुक्त विद्रति का अतिरिक्त जो मज्जा परिपाक विद्रति, उसको एलोपैथिक में एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, मज्जा परिपाक में एक्यूट माइलाइटिस ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं, उसको याद रखना। अंतर्विद्र का श्राव मार्ग क्या होगा? ना नाभि प्रदेश में उत्पन्न अंतर्विद्र का श्राव मुख से करेंगे, ठीक है, और गुद मार्ग से बाहर आता है। ये क्या होता है? शरीर के ऊपरी भागों में पकने के बाद फूटी हुई अंतर्विद्रति में मुख से श्राव निकलता है। नीचे भाग में उत्पन्न अंतर्विद्र का श्राव गुद मार्ग से, और नाभि प्रदेश में उत्पन्न अंतर्विद्र का श्राव मुख में होता है तथा गुद मार्ग से बाहर आता है। इसको अच्छी तरीके से याद रख लो। और श्राव मार्ग टोटल होता है 3, श्राव मार्ग टोटल होता है 3, मुख मार्ग होता है, गुद मार्ग, और ठीक है, मुख हो गया, गुद हो गया, हाँ, नीचे भाग में उत्पन्न श्राव गुद मार्ग से होता है, और नाभि प्रदेश में उत्पन्न विद्रति का श्राव मुख तथा गुद, एक मुख होगा, एक गुद होगा, एक मुख प्लस गुद होगा, ये टोटल 3, ठीक है। मृत्यु कारक तथा शीघ्र शांत करने के योग्य विद्रति क्या होगा? ना स्नेह विरेचनिक सेव उपक्रम सर्वसु गुल्म बच्चति, यानी हृदय नाभि बस्ती स्थान में उत्पन्न तथा सान्निपातिक अंतर्विद्रति यदि पक जाती है तो मृत्यु कारक हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हृदय नाभि बस्ती प्रदेश में अगर उत्पन्न होता है, सान्निपातिक अगर होगा, अगर वो पक जाते हैं तो मृत्यु कारक हो जाता है। उनके अतिरिक्त जो विद्रति है वो कुशल तथा शीघ्र चिकित्सा करने वाले चिकित्सक को पाकर शांत हो जाते हैं, और गुल्म की भांति उनका चिकित्सा करे, पाक न होने से पहले ही उनका चिकित्सा हम लोग कर देना चाहिए, ठीक है। सुश्रुत में क्या बोले हैं कि नीचे की ओर व्रण का श्राप होने पर मनुष्य जीवित रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर की ओर जिन विद्रोधियों का श्राप होता है उनमें मृत्यु हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर श्राप वाले विद्रोधियों का मुख यदि भीतर की ओर न हो, सौभाग्य से बाहर की ओर हो जाता है, तब तो मनुष्य कदाचित बच जाता है, ठीक है, उसको याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, भवंती छात्र लास्ट में कि बिना प्रमेहम अपीयता जानते दुष्ट मेधस, जिनका मेधा धातु दूषित होता है उनको प्रमेह के बिना भी पीड़ाएं हो जाती है। तो प्रमेह पीड़ा का जब हमने डिस्कशन किया, अगर मान लो किसको प्रमेह नहीं है फिर भी पीड़ा होगा, किस कंडीशन में? अगर इसका मेधोधातु दूषित हो तो, किंतु इनका स्वरूप तब तक स्पष्ट ना हो जब तक अपने स्थान से पूर्ण रूप से वो स्पष्ट ना होता हो, ठीक है। तो असह्य पीड़ा का क्या क्या होगा? शराबिका, कच्छपिका, जालिनी, यह असभ्य मतलब असह्य पीड़ा का होता है क्या क्या? स क जा, इसका फॉर्मूला मैं बताया हूं, स क जा, शराबिका, कच्छपिका, जालिनी असह्य होता है, ठीक है। जायते अति बड़ा प्रभुत श्लेष्म, इसमें क्यों होता है ये? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अत्यंत बल युक्त होते हैं और प्रभुत श्लेष्म मदस, इसमें श्लेष्म और मेधो ज्यादा रहते हैं। साध्य पीड़ा का क्या होगा? जिन पुरुषों में मेधो धातु बहुत कम है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिन पुरुषों में मेधो धातु कम है उनका शरीर में पित्त प्रधान पीड़ाएं
उत्पन्न होती है, समय पर उनका चिकित्सा किया जाता है और उनका नाम होता है सरसपी, उनका नाम होता है सरसपी, औलजी, भिन्नता, विद्रदी, ये टोटल साध्य। असाध्य होते हैं सकोजा, शराबिका, कच्छपिका, जालिनी। असाध्य पीड़ा का और क्या होगा? मर्म प्रदेश, कंधा प्रदेश, अंश प्रदेश, गुद, पानी, पाणी, हस्त, संधि, पाद, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अगर होगा तो ये टोटल असाध्य पीड़ा का होगा। ठीक है, इसके बाद नित्यं सन्निहत मित्यं समीख्यात्मनम आत्मवान नित्यं युक्त परिचरित इच्छानुर नित्यरम, अर्थात स्थिर आयु की कामना करने वाले जितेंद्रिय तथा धीर पुरुष को चाहिए कि वो सदैव अपने की शत्रुओं से घिरा हुआ समझकर, मतलब दोस्त जैसे अफेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे हमको मतलब देख के ही ये करना है, शरीर वाले उसको ऐसे मतलब समझेंगे। ये हो गया रेफरेंस। सो थैंक यू सो मच, सो पेशेंसफुली लिसनिंग टू मी। एक्चुअली ये चैप्टर नॉर्मली 1 घंटा में खत्म होता है, लेकिन पूरे मतलब स्टार्टिंग से उसको मैं थोड़ा संप्राप्ति से शुरू किया, तभी थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर सो पेशेंसफुली लिसनिंग टू डॉक्टर संजीव आयुर अकेडमी। रिमेनिंग of 4 days classes are there, and also Dr. Akshay will be also taking your class so nicely. So thank you so much. Good night, good night, good night. Thank you.